the job description of that specific department will be called the constitution of that specific department, right? So somehow the constitution is the system of fundamental laws that prescribes the nature, the limit, or the functions of a government or a specific institution, right? That is called constitution. As far as the constitution of Pakistan is concerned, we had three constitutions, right? 1956, 1962, and we had a constitution in 1973 as well. According to the 1973 constitution, if I ask you a question, and if there's a question in your written exams, that according to the constitution of 1973, what is the composition of a government? What will be the answer? What is the composition of a government according to the constitution of 1973? From presidential to parliament? From Right? Democratic government, they are having the options. Democratic government? Is the presidential form of government not a democratic government? presidential to parliamentary form of government. It's a parliamentary form of government we're talking about, right? So, according to the Constitution of 1973, there are four pillars of the government of Pakistan. Let me tell you. There's a president, then you have the prime minister, then you have the senate, then you have the national assembly. So these four things prescribes the government in Pakistan according to the Constitution of 1973. Right? This is the constitution that governs Pakistan now. There was a constitution that governed Pakistan from 56 to 58. Then there was a constitution that governed Pakistan from 62 to 69. Right? That specific constitution that is right now incorporated in Pakistan in 1973 is amalgamation of both of these constitutions. Not specifically all the clauses of both constitutions were amalgamated in this constitution, but somehow major points of two constitutions are part of this constitution. Right? We'll do the difference. What is the difference between all three of them? Right now, any questions? Nine. According to the Constitution of 1973, this Senate and this National Assembly, there are 104 seats of Senate, there are 342 seats of National Assembly, 22 seats into 4 provinces, 88. Then you have 4 seats for minorities, you have 4 seats for the people of Islamabad, then you have 8 seats for the people of Putnam. That is 104 seats. Right? You have 342 National Assembly seats. Out of 342, 272 are general seats, 60 are the women quota, and 10 is for the minorities. So according to the constitution, there are 104 Senate seats, there are 342 seats of the National Assembly, out of 342, 272 are the general seats, elected seats, 60 are the women specific quotas, and 10 are the minorities. ये जो 60 women की seats है ना, ये according to the seats won by specific parties allocate होगी. अगर एक specific party ने कुछ seats जितनी जीतनी है उस हिसाब से 60% को 342 पे डिवाइड करके उसी परसेंटेज निकाल कर वो seats allocate कर दी जाती हैं उन parties को. Right? Got the idea? इस तरह ये clear होता है 340. There are 104 specific seats. 22 are given to each province. That means 22 into 4 is 88. 4 seats are given to the minorities, that is 92. 4 seats given to the federal capital, that is Islamabad, 96, and 8 are given to the Fatah people. That makes it 104. So there are total 104 seats in Senate and 342 seats in the National Assembly. So what's the What about the minority? Then where National Assembly. in the National Assembly as far as the allocation is concerned? Allocation is specifically the quota that you have to deal with minorities. You have to give specific tickets to those specific minorities as well. And if the minorities they are not in a specific 272 seats, वो होता उसमें ये है कि हर पार्टी को उनकी जीतने के हिसाब से माइनॉरिटीज की सीट भी कोटे में देती जाती हैं जिस तरह वुमेन को देते हैं. लेकिन उसमें होता ये है कि माइनॉरिटीज ओपन सीट्स पर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं जो 272 में. अगर उसमें से कोई माइनॉरिटी जीत जाए वो 10 में काउंट नहीं होती, वो 10 अलग ही है.
तो अगर फॉर एग्जांपल 272 में से 272 ही माइनॉरिटीज दी जाएं तो फिर भी जो 10 की जो माइनॉरिटीज का कोटा है वो फिर भी वही कर रहे हैं। और अगर कोई जनरल में है तो वो जॉइंट इलेक्टोरेट। यस, जॉइंट इलेक्टोरेट है, वो मेरिट पर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो 10 जो है वो ऑटोमेटिकली वो तो आएंगी आएंगी। अगर कोई भी माइनॉरिटी जो है जनरल इलेक्शन नहीं जीते तो फिर भी 10 माइनॉरिटीज हैं। ये आती हैं अकॉर्डिंग टू दी seats that are won by specific parties in the general elections. It is how it is done, right? तो मसला है कोई परेशानी नहीं। आएगी difference between 1956, 1962 and 1973 constitution. This is for the first constitution. Yes. 62 was the second constitution. And there was a vote down. तो यार ये मुझे पता ही नहीं था। I thought so going from say 73 backwards to 62 and अच्छा, right? Thank you for the information. तो ये होता है ना वो इंसान को परेशान हो तो परेशान हो कहता ना हो परेशान। यार गुड आइडिया है। ये तो मेरे ज़हन में नहीं आया कि मैं परेशान ना हूँ। So even after merger, is there any chance कि वो party की 8 seats में change हो? is a chance, हाँ there is a chance, लेकिन होता ये है कि वो शायद हो सकता है कि जब फाटा वैसे ही केपीके में आ जाए तो इंक्लूड कर देंगे केपीके को, जो 8 सीट उनको डिवाइड कर दें दो बाकी सारे प्रोविंसेस को। there is a chance, लेकिन right now this is the something that is there in right now. हो सकता है later on हो जाएगा, लेकिन वो 8 के 8 केपीके में मिलती है। हाँ 8 के 8 तो तभी मिलती नहीं वो डिवाइड होगी ना वो प्रॉपर। फिर तो एक होगा ना फिर आपने अगर उस हिसाब से देखें तो पंजाब की तो पॉपुलेशन ज्यादा है, आपको पंजाब को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। है। अगर टेरिटरी के हिसाब से देखें तो बलूचिस्तान को मिलनी चाहिए। लेकिन उसमें होता ये है कि अगर आप इस तरह डिवाइड करेंगे तो फिर आपको अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी और अमेंडमेंट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली डिवाइड करेंगे, राइट। Seventh made a part of 25th amendment. ये 8 सीटें हां and they reducing it under the part. अभी कुछ नहीं किया। अभी तो सिर्फ अमेंडमेंट आई है कि 25th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली फाटा इज द पार्ट ऑफ केपी, राइट। उसके बाद गवर्नेंस कैसे होगी, सीटें कैसे डिवाइड होंगी, इसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर होगा अभी बाद में, अगर बाद में अमेंडमेंट कोई और आ जाती है तो हो सकता है। मैं राइट नाउ की बात बता, अभी उसके हिसाब से चीजें हुई है। टॉकिंग अबाउट 56, 62 and 73 constitution. The number 1, the incorporation of the constitutions. 1956, 1962, 1973. कोशिश करें अगर आप कोई बॉक्स पे डालें तो आपके लिए आसान हो जाएगा चीजें लिखने, राइट। सो नंबर 1, 23rd March 1956 till 7th October 1958. So we waited for 9 years for our constitution and it lasted for 2 years. Right? The Constituent Assembly that was made in 1950s was basically overthrown by the Governor General Ghulam Muhammad at that time. Right? वो हम पढ़ेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर जब हम मौलवी तमीजुद्दीन खान केस और दासू केस सारे पढ़ेंगे तो उसमें डील करेंगे। So we waited for 9 years for a constitution to last 2 years, right? ये हमारा constitution था till 58. From 1958 till 1962 हमारे पास फिर कोई constitution नहीं, and we were governing our institutions according to this repealed constitution. It was not enforced in a proper way, but the way the government was going on, हमारे पास एक repealed constitution था जिसके ऊपर हम एक पूरी की पूरी गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, right? तो फिर बाद में in June 1962 we had another constitution. June 1962. It went on till 1969. June 1962 till 1969. 8th June and 25th of March. 8th June 1962 till 25th of March 1969. We had the second constitution. And the third and the foremost constitution that is still applicable in the Islamic Republic of Pakistan is the 14th August 1973 constitution. ये तो हमारी डेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गई। लेकिन आपने गौर ये करना है, before the constitution that was made in 1956, we already passed a specific resolution that was called an objective resolution, जो हमने 1949-1950 में पास कर ली थी from the Constituent Assembly of Pakistan. अगर हम इसको एक broader perspective में देखें, that specific constitution or that specific objective resolution that was made
उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो शायद किसी और चीज ने नहीं पहुंचाया। उसकी रीजन थी, दो चीजें हैं, आप मेरी बात से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, मेरी बात के फेवर में भी जा सकते हैं। यू वर अ नेसेंट स्टेट एट दैट टाइम, यू वर ओनली 2 years old। आप उस वक्त जब एक स्पेसिफिक रिलीजन को बाकी रिलीजन से सुपरसीड करते हो तो आप पूरी दुनिया को यह पैगाम देते हो कि आपका एक रिलीजन बाकी रिलीजन से ऊपर आएगा तो अनफॉर्चुनेटली माइनॉरिटीज के दिल में या ज़हन में ख्याल आ सकता है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं वो सप्रेस हो जाएंगे स्पेसिफिक नेशन के अंदर। फ्रॉम 1950 टिल 1956 जितने हिंदूज ने वापस जो है वो माइग्रेशन की फ्रॉम पाकिस्तान, इट हैज नॉट बीन डन फ्रॉम 1956 टिल 2018। उसकी रीजन ये थी कि आफ्टर द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन माइनॉरिटीज के जहन में ये ख्याल आना शुरू हो गया था कि हो सकता है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान where the rules of Islamic Sharia will be implemented and ultimately the people which are from the opposite religion, the rights of those people will be suppressed, right? अब इसी को आप दूसरे एंगल से देखें, जब आपने सिर्फ उर्दू को नेशनल लैंग्वेज करार दिया और आपने उसके अंदर से बंगाली को निकाल दिया, राइट? तो even this is symbolic narrative, right? You haven't done anything, it's a symbolic narrative, हुआ कुछ भी नहीं ना। आपने कहीं ये तो नहीं ना लिखा कि हमने बंगाली को सप्रेस करना है, आपने सिर्फ ये लिखा कि हमने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बनाना है। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मैटर्स। तो सिंबॉलिक नैरेटिव को देखते हुए बंगाली पीपल के जहन में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि हमारे राइट्स को सप्रेस कर दिया जाए। इवन इट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इट वाज नथिंग मोर। हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा था कि हम बंगाली को सप्रेस करेंगे, हमने सिर्फ ये लिखा था कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज होगी। हमने वहां पर ये कभी भी नहीं लिखा था कि हम बाकी रिलीजन को सप्रेस करेंगे, हमने सिर्फ ये लिखा था कि इस्लाम हमारा रिलीजन होगा, नेशनल रिलीजन, राइट? तो ये चीजें देखनी चाहिए। अगर इम्तिहान देना है, अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं इस चीज के ऊपर, वो क्रिटिकल एनालिसिस आपके ज़हन में बड़ा क्लियर होना चाहिए। आपने कहें कि ये चीज बिल्कुल भी वाज़ेह नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। इवन इंडिया, टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया इज अ रिपब्लिक, राइट? वो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदू रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक है। देयर आर मोर मुस्लिम्स residing in India than the population, total population of Pakistan, right? तो क्या जरूरी है कि हम पाकिस्तान के साथ इस्लामिक रिपब्लिक लगाते, कि हमें सिर्फ दुनिया के सामने एक सिंबॉलिक नैरेटिव क्रिएट कर दिया हमने कि हो सकता है कि बाकियों के राइट्स में सप्रेस हो, और इसी वजह से बाकी दुनिया जो है वो आपको ये समझती है कि आपके आप राइट्स को सप्रेस करते हैं from the very start in the nation of Pakistan. Sir, the basic ideology behind creation of Pakistan was that हम लोगों को एक ऐसी स्टेट बनानी थी जहाँ पे इस्लाम प्रिवेल कर सका. So that was the whole point. Don't talk about the scriptures of Qaeda and Muhammad Ali Jinnah's speeches, right? अगर आप 3 speeches मुझे कोट करते हैं ना Qaeda and Muhammad Ali Jinnah ने इस्लामिक रिपब्लिक बनाना था, तो मैं आपको 8 speeches ये कोट कर सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हम रिलीजन को साथ नहीं लेकर चलेंगे, राइट? तो अगर आप सिर्फ ये बात समझते हैं ना कि आप सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे बनाया गया था कि आपने फंडामेंटल जो है मुस्लिम जो है स्टेट बनानी है, तो आप मुझे कोई एग्जांपल दें तारीख इंसानियत में से मुस्लिम स्टेट की कि जिसके अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स को सप्रेस किया गया। अगर आपने मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भी बनानी थी तो आपको साथ माइनॉरिटीज की बात लेकर चलनी थी। टॉक अबाउट सऊदी अरेबिया, क्या सऊदी अरेबिया के नाम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक आता है? हमारे पास सिर्फ 2 स्टेट्स आती है, पाकिस्तान और ईरान, जिनके नाम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक आता है। वो इस्लामिक रिपब्लिक करता तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको वही कह रहा हूं, इसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन एक सिंबॉलिक नैरेटिव दुनिया के सामने ये क्रिएट हो रहा है कि यहां पर जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो इस्लाम है। आपसे ज्यादा मुसलमान बड़े तुर्की में रहते हैं। क्या तुर्की एक सेकुलर स्टेट है? बिल्कुल एक सेकुलर स्टेट है। क्या वहां पे मुसलमानों के राइट्स को सप्रेस किया जाता है? बिल्कुल सप्रेस नहीं किया जाता। वो साइमल्टेनियसली वहां पर इकट्ठे भी रहते हैं, और वो आपसे बड़े मुसलमान हैं, आपसे ज्यादा पक्के मुसलमान। आप दुनिया में सबसे ज्यादा हज और उम्रे करते हैं, और आप ईमानदारी में 170 में से 167 नंबर पर, राइट? ये सिंबॉलिक नैरेटिव जो आपने क्रिएट किया दुनिया के सामने, टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसने जितना डेंट हमारे इमेज के ऊपर डाला शायद कभी किसी ने नहीं डाला, और हम उसी डेंट की वजह से फिर हमने शरिया लॉ नाफिज करने की कोशिश की 85 में, और फिर नवाज शरीफ साहब ने 98 में शरिया लॉ नाफिज करने की कोशिश की, राइट? क्योंकि हमारे नाम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
तो ये चीजें अगर आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्योंकि आप एक इम्तिहान देने जा रहे हैं, अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं ना इस चीज के ऊपर, तो आपने ये चीज कभी भी नहीं कहनी कि इसका नुकसान हुआ। आपने कहना है कि सवाल ये है कि इसका फायदा हमें क्या हुआ, हमें नुकसान कोई भी नहीं हुआ। लेकिन एक सिंबॉलिक नैरेटिव हमने दुनिया में ये क्रिएट कर दिया कि वी आर अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट वेयर द पीपल ऑफ द अदर रिलीजन्स द राइट्स मे बी सप्रेस्ड। हमने किया नहीं जानबूझ के, लेकिन एक इमेज क्रिएट हो गया पूरी दुनिया की नजर में, और माइनॉरिटीज की नजर में एक इमेज क्रिएट होगा जिसको कैश किया फिर दूसरी कंट्रीज, जिसकी वजह से फिर हमने नुकसान उठाया। राइट? तो गोइंग बैक टू 1956 एंड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये इसी तरह पेपर में लिख सकते हैं इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन आप क्या बाइस होते हैं इसमें कि आप यानी कि सेकुलर की तरफ स्टेट तो यहाँ ये कहीं नहीं आपने सेकुलर स्टेट बनाए हैं। मैं तो आपको ये भी नहीं कह रहा कि आपने जो है इसका करने से नुकसान किया है आपने। अब एक सवाल उठाएं पेपर के अंदर कि हमें फायदा क्या हुआ इस चीज का। यू क्रिएटेड अ सिंबॉलिक नेट। भाई मेरी बात सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि हमें एक ऐसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन चाहिए थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जिसके थ्रू हम किसी चीज को गवर्न कर सकते, इसीलिए हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाया, वरना हमारे पास कुछ था ही नहीं गवर्न करने को। और क्या है? तो अगर आपने यही चीज करनी थी तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 3 आर्टिकल्स निकालते हैं जिसके अंदर से आप ये बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, जुडिशरी की क्या पावर है और लेजिस्लेशन की क्या पावर है। आप वो उठा लेते। अगर आपने सिंबॉलिक नैरेटिव क्रिएट करना था ना पूरी दुनिया के सामने, आपने अपनी कंट्री को रन नहीं करना था ना, तो आप वो उठा लेते। ये जैसे इंडिया ने किया वैसे भी हम कर सकते थे। आप कर लेते हैं। जैसे बोल रहे हैं तो देखिए ना, मेरी बात सुने, आप अगर आप मुकाबला करने को तैयार हैं, ठीक है जी, पर मुकाबला करें प्रॉपर तरीके से। हमारे ये अच्छा, मैं क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये सवाल ही उठा रहा हूं कि हमें ऐसा करने से फायदा क्या हुआ। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमने गलत किया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने किया उसका फायदा क्या, ये सवाल। और इसके ऊपर आप बात कर सकते हैं कि जी हमारे साथ हमने हो सकता है कि हमसे कोई मिसकैलकुलेशन हुई। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान को नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए? क्या पाकिस्तान सीटो सेंटो का पार्ट बनता कि ना पड़ता? अब एक तरफ हम साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी के मेंबर हैं, दूसरी तरफ हम सेंट्रल ट्रीटी के मेंबर हैं। There's a poles apart, right? So somehow the people who were running the state at that time were not even clear what they wanted to do, right? And that is why this is a problem that जो कि हम फिर 1973 के अंदर आगे जाके हमारा प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसके अंदर हमें अभी भी हम फिर 25 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं उसके अंदर। Sir, is there any provision of non-Muslim representatives in National Assembly or Senate? Non-representation? Non-Muslim माइनॉरिटीज हैं, मैंने बताया ना, 4 सीटें आपकी रिजर्व्ड हैं सेनेट में और 10 सीटें रिजर्व्ड हैं आपकी जो है वो उसके अंदर नेशनल असेंबली के अंदर। सर मेरे 2-3 सवाल थे। मैं सर ये पूछना चाहती थी कि आप ये बता रहे हैं कि ये 2 बेसिक रीजंस थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिले हुआ जी, ये 2 बेसिक रीजंस थी जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन no, I never said that. I never said that these were the basic reasons why our constitution was delayed. The reason I am saying that कि आपको एक देखिए, आपने 1935 का इंडिया एक्ट था आपके पास, राइट? आपने जब मौलवी तमीजुद्दीन खान केस किया, ठीक है जी, आपके गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने कहा कि इस वक्त हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसीलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इस्तेमाल करते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर रहा हूं, राइट? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उसमें। मौलवी तमीजुद्दीन खान चले गए जी सिंध हाई कोर्ट के अंदर, फैसला मौलवी तमीजुद्दीन खान के हक में हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बहाल हो गई। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई गवर्नमेंट, वहां से गवर्नमेंट के हक में फैसला हो गया, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खत्म हो गई। 4-1 फैसला आया, जस्टिस मुनीर ने हक में फैसला दिया। एक जो फैसला अगेंस्ट है तो जस्टिस कॉर्नेलियस का। जस्टिस कॉर्नेलियस ने ये कहा कि आई डोंट एग्री दैट पाकिस्तान इज टू बी गवर्न्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 बिकॉज़ पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट नाउ and we don't abide by the laws that were present in 1935 in the joint India, right? मैं ये आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई मुश्किल पेश आ रही थी तो आपके पास और बहुत एग्जांपल्स मौजूद थी जिनको आप इनकॉर्पोरेट करके एक रनिंग पोजीशन में गवर्नमेंट को ला सकते थे और उस रनिंग पोजीशन के बाद फिर आप जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे। मैंने कभी भी नहीं कहा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से हमारा जो है वो नुकसान हुआ। बात करें जो है उसके अंदर इस्लाम जो मुस्लिम हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इस्लामिक है, इस्लाम में तो बहुत ज्यादा माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं है। अगर हम इस्लाम की बात करें कि हमने माइनॉरिटीज को सप्रेस कर दिया, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस्लाम की बात करें तो माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा राइट्स दिए गए। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वजह से कोई हमने माइनॉरिटीज को ये इशारा दिया हो या हमने कोई पॉइंट। आप मेरी बात गलत समझती हैं।
मैं आपको ये कहीं भी नहीं रहा कि पाकिस्तान ने जानबूझ के माइनॉरिटीज के राइट को सप्रेस किया। जितने माइनॉरिटीज के राइट्स, जितने विमेन राइट्स इस्लाम ने दिए हैं, इतने किसी ने नहीं दिए, इतने किसी ने नहीं दिए। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमें ये जरूरत क्या थी कहने की कि एक नेशनल रिलीजन होगा हमारा। आप वैसे भी तो माइनॉरिटीज को राइट्स दे ही रहे थे, आपको सिंबॉलिक नैरेटिव क्रिएट करने की जरूरत क्या थी? क्या टर्की ने अपने नाम के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ टर्की लगाया? क्या अभी उनके राइट्स वहां पर मौजूद नहीं है? क्या मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमें जरूरत नहीं थी किसी चीज की। हम तब भी तो माइनॉरिटीज को राइट्स दे ही रहे थे ना, हम उसके बाद भी दे रहे थे। लेकिन एक सिंबॉलिक नैरेटिव क्रिएट कर दिया हमने दुनिया को दिखाने के लिए, जिसमें दुनिया ने हमसे सवाल करना शुरू कर दिया। हमें जरूरत नहीं थी एक चीज की, हम तो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। हम तो अभी भी माइनॉरिटीज को राइट्स दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। जितने राइट्स हमने दिए माइनॉरिटीज को, उतने आज तक किसी रिलीजन ने नहीं दिए। जितने विमेन राइट्स इस्लाम ने दिए, उतने आज तक किसी रिलीजन ने नहीं दिए। आई अबाइड बाय दैट स्पेसिफिक थिंग। आई हैव स्टडीड शरिया लॉ माय सेल्फ, प्रैक्टिसिंग शरिया लॉ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एक नाम जो टैग लगा देती है ना आप किसी चीज के ऊपर, वो दूसरे को सवाल करने का मौका दे देता है। आप खड़े हो जाएं, आप सामने खड़े हैं, किसी को नहीं पता कि आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, क्या सारा कुछ है, और आप अपने हाथ ऊपर खड़े कर दें कि मैं मुसलमान हूं, सबको पता चल जाएगा आप मुसलमान हैं। आपने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, आपने सिर्फ बताया है कि मैं मुसलमान हूं। लेकिन क्या है कि आप फिर सबके सामने प्रोमिनेंट हो गए, सारे फिर आपसे सवाल कर सकते हैं चीजों के बारे में। मैं ये कहना चाह रहा था कि उस वक्त आप एक नेसेंट स्टेट थे, आपको पैदा हुए 2 साल हुए थे सिर्फ, आपको बहुत से और चीजों को देखना चाहिए था, रादर देन कि टैग लगा दें अपने ऊपर। वो टैग अभी तक चल रहा है। मैं कह रहा हूं उसने आपने गलत नहीं किया, हम कुछ और भी कर सकते थे उसकी जगह जो हमें फायदा देता बाद में चल। And you are being exploited by this Absolutely, madam. That is the reason that other nations have exploited you. That is the reason other nations have exploited you. आपने कहा जी आपके पास सफेद रंग का झंडा है आपके झंडे के अंदर, ठीक है जी, वो मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन तरीकेकार ये है कि आपने जब उर्दू हिंदी कह रहा हूं, उर्दू और बंगाली को लगाया आपने अपना नेशनल लैंग्वेज, आपको करना पड़ा ना 62 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि बंगालियों ने तो जीना हराम कर दिया था आपका। ये जी वी आर अ नेशन, हम ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हैं, आप कैसे कर सकते हैं उर्दू को सिर्फ अलग? आपने 62 में जानबूझ के फिर किया कि आपने बंगाली को भी डाला उसके अंदर, क्योंकि आपको मुसीबत पड़ गई थी उस टाइम। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें जरूरत नहीं थी एक चीज की, हमने गलत किया, हमें उस टाइम जरूरत नहीं थी। हाँ, हम 73 में आते, हम तब तक एक अच्छी नेशन बन चुके थे, वी वर एस्टैब्लिश्ड नेशन एट दैट टाइम। हम उस टाइम जो मर्जी करते, दैट इज सेपरेट। Sir, don't you think it's easier to analyze in hindsight? Because the members of the Constituent Assembly overwhelmingly they agreed in favor of the objective resolution. I am not saying that it was not, sir, I am not saying that it was forcefully implemented in the Constitution of Pakistan. I'm not saying it. I'm even not saying कि आपने गलत किया उस चीज को, वहां पर आप ये कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि अगर आपने अपने मुल्क को चलाने के लिए एक रनिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, तो आपके पास और भी एग्जांपल्स मौजूद हैं, आप उनको भी ले सकते हैं। दैट्स क्लियर। सच एज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको पता होता, आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर करते, आप सेपरेशन ऑफ पावर करते, हमारी जुडिशरी की ये पावर होगी, लेजिस्लेशन की ये पावर होगी और एग्जीक्यूटिव की ये पावर होगी। आप नेशन स्टेट थे, आपको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी चाहिए थी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को गुनाह करते थे, कायदे आज़म का या उससे पहले जो मौक़िफ़ था, वी आर मुस्लिम नेशन, वो गलत स्टैंड है। यार मुस्लिम नेशन थे, आपको बताने की क्या जरूरत है यार? आपको कौन सी You एक मिनट मैं बताता हूँ। You made the atomic weapons in 1984, sir, and you showed the world in 1998. क्यों छुपाई रखा आपने? अफगान वॉर चल रही थी ना, पैसा आ रहा था ना आपके पास, क्या एटॉमिक वेपन्स खत्म हो गए 14 साल के अंदर, पड़े रहे ना आपके पास? दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? मुझे ये सवाल भी कर रहे हैं आप। कायदे आज़म ने कहा कि you are governed, you should be governed on Islamic principles. Sir, I abide by that. You would have been governed by Islamic principles. आप करते रहते उसको प्रिंसिपल्स को, लेकिन आप एक नेशनल स्टेट थे, जो आपने टैग लगा दिया ना, उस टैग को एक्सप्लॉइट किया बाकी नेशंस ने। मैं ये कहना चाह रहा हूं, राइट? हमें जरूरत नहीं थी उसको करने की, आप करते रहते। आप इस्लामिक प्रिंसिपल्स को जो है लगवाते, आप माइनॉरिटीज को प्रॉपर राइट्स देते, अभी भी दें, तब भी दे रहे थे आपने गलत कुछ नहीं किया। लेकिन जब आपने टैग लगा दिया ना, तो आपने दुनिया को सवाल करने का टाइम दे दिया, ठीक है? तब दुनिया के पास सवाल करने का टाइम नहीं होना था। आप गवर्न करते रहते, आप इस्लामिक प्रिंसिपल पे गवर्न करते, वो कहते जी आप इस्लामिक प्रिंसिपल पे क्यों गवर्न कर रहे हो, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, जिसमें मर्जी गवर्न करें। लेकिन जब आप who are you to ask us?
लेकिन जब आपने टैग लगा दिया कि हम इस्लामिक नेशन है, तो फिर एक सिंबॉलिक नैरेटिव क्रिएट कर दिया आपने कि भाईजान आप सिर्फ इस्लाम चलेगा। Got the idea? What I'm trying to, the idea I'm trying to. Madam. इसी पॉइंट को फर्दर करना चाहूंगी कि आप जैसे कंपेयर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस अमेरिकन इंडिपेंडेंस की और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर रीजन फॉर देयर इंडिपेंडेंस struggle and for ours, because they struggle for freedom, for economical freedom and other freedoms, but we struggle for an independent state where we can live according to our religion. तो उसमें फिर हमारे लिए तो religion बहुत important था, तो हमारी existence को justify आप लोग, मुझे नहीं समझ लगी कि आप लोग उसको नेगेटिव बोले। मैं कह रहा हूँ कि आपके रिलीजन उस टाइम भी इंपॉर्टेंट था, आपके रिलीजन अभी भी इंपॉर्टेंट है। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, मुझे इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करना, मैं तो उस पे बिल्कुल जमा हूँ। उसकी सवाल ये है कि आपको बता के करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमें justify करना था हमारी। आप किसको जस्टिफाई कर? Who was asking you questions? Did any specific nation ask you questions that according to which religion you are conducting your state? A question, madam. Did anyone ask you questions at that time that which specific religion are you following? Then why there was a need to tell everyone that we are governing according to a specific religion? लेकिन फिर हम self determination की बात करते हैं, सब कुछ self। मैडम मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम देखिए जरूरत, एक बंदा है, आप उसे कहेंगे जी तुम्हारे साथ एक गलत चीज हुई 10 साल पहले, तुम अब क्यों बोल रहे हो उसके बारे में? हालात चेंज थे। आप एक नेसेंट स्टेट थे, आपकी उम्र सिर्फ 2 साल थी, आपके पास ना पैसा था गवर्न करने को, ना आपके किसी मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, सिवाय एक ईरान के साथ। आपकी बताएं किसके साथ ताल्लुकात थे? फर्स्ट स्पेसिफिक जो आपका हेड ऑफ स्टेट है जिसने आपके पाकिस्तान का दौरा किया, वो प्रेसिडेंट सुल्तानो थे जो इंडोनेशिया से आए थे 1950 में। 1950 तक आपके मुल्क में एक बंदा नहीं आया, क्योंकि आपके मुल्क के हालात नहीं ठीक थे। जब आपके मुल्क के हालात नहीं ठीक होते ना, तो आपको चीजें दूसरे पर्सपेक्टिव में देखनी पड़ती है, राइट? डॉक्टर मरीना लोधी अपनी बुक बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट में लिखती हैं कि व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड स्टेट सॉवरेनिटी, मोरालिटी टेक्स द बैक सीट। देयर आर नो मॉरल्स when there is a question of state security. This is the same principle that is applied on the intelligence agencies. वो कहते हैं कि स्टेट सिक्योरिटी का मसला है, हमारे पास कोई मॉरल्स नहीं है, हमारे लिए स्टेट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए स्टेट सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, आपके लिए स्टेट की तरक्की इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने ये करके स्टेट की तरक्की को रोक दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो चीज आपने की इसकी जगह हम मजीद कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। गलत कुछ नहीं किया। हाँ, ये अगर आप 73 में करते आगे सिर्फ बिल्कुल ठीक था, अभी भी आपने किया, अभी भी आपका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि जिस टाइम आपने इसको बनाया वो टाइम गलत था। आप ये टाइम बाद में भी कर सकते थे, आप इसको बाद में भी बना सकते थे, राइट? अब आप उसको एग्जांपल आप ले रहे हैं, आपने 4 काम करने हैं, अब आप सबसे पहले वो काम करना शुरू कर दें जो सबसे मुश्किल है। आप तो करते ही रहेंगे उस काम को 4 साल तक। आपको करना वो चाहिए था जो आसान था, ताकि आपके लिए साइकोलॉजिकल आपका एक बूस्ट मिलता आपको कि नो ये काम हो गया। आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाएं जो आपको सबसे आसान लगता है, आपको वो करें, इसको बने लगा दें साइड पे, साइकोलॉजिकली यू विल फील बेटर तो एक सब्जेक्ट बने लगा दें। फिर दूसरा उठाएं, दूसरा करें कंप्लीट, फिर तीसरा करें। अगर आप वो सब्जेक्ट उठाएंगे जो सबसे मुश्किल है, तो फिर आपको एक तो कंप्लीट नहीं होगा, फिर आपको साइकोलॉजिकली लगना शुरू होगा अच्छा यार ये भी 6 पढ़े हैं। व्हाट आइडिया? ये काम करना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ होती है प्राइमरी चीजें, कुछ सेकेंडरी, कुछ टर्शियरी। हम टर्शियरी काम पहले किया, हमने प्राइमरी काम नहीं किया, ये चीज थी मसला उसका सिर्फ चीज, राइट? मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आपने गलत किया या आप गवर्नेंस का तरीका गलत था या आपको इस्लामिक सिस्टम नहीं लगाना चाहिए था, आपको यही सिस्टम लगाना चाहिए था, लेकिन आपको चुप करके अपना काम करना चाहिए, आपको अपने ऊपर लेवल नहीं लगाना चाहिए था। आप माओ ज़ेडोंग की बात सुने, जो उसने चाइनीज रेवोल्यूशन की बात की थी, चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद उसका ये 60 साल 60 इयर्स हम दुनिया की इकोनॉमी को ताला लगा देंगे 60 सालों के, और वो ताला भी चाइना का होगा, ठीक है? क्या स्पेसिफिक रिलीजन की बेसिस के ऊपर उन्होंने किया? नहीं, वो चुप करके अपना काम करते हैं, अभी भी वो इकोनॉमी को ऊपर रखते हैं। आप मुझे बताएं साइनो इंडियन वॉर के बाद चाइना ने कोई वॉर लड़ी? कोई वॉर नहीं लड़ी उन्होंने साइनो इंडियन वॉर के बाद 62-63 के बाद, क्योंकि उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमी,
ना अपने ऊपर लेबल लगवाया, चुप करके अपना काम करते रहे, वो है भी गैर मुस्लिम। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आपको लेबल नहीं लगवाना चाहिए था। ये लेबल ने नुकसान बढ़ा दिया आपको। इस लेबल का नुकसान पता क्या हुआ? इस लेबल का नुकसान ये हुआ कि जो गैर मुस्लिम मुल्क थे ना, गैर मुस्लिम ममालिक, उन्होंने शुरू से ही आपको अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने शुरू से ही अडॉप्ट करने से इनकार कर दिया। यही अगर आपके ऊपर लेबल ना लगा होता, हो सकता था कि आप उनके साथ मिलते, तिजारत अपनी बढ़ाते, तिजारत बढ़ाने के बाद जब आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाते, आप जो मर्जी करते। ठीक है, तो हमें इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही रास्ता था कि हम कोई मुसलमान मुल्क ढूंढे जो हमारी मदद करे, क्योंकि बाकियों ने तो मदद करने से इनकार कर दिया। ये टैग बड़ा इंपॉर्टेंट था आपका, जिसने नुकसान दिया। आपको टैग नहीं लगवाना चाहिए। क्लियर हुई चीज? आइए 234 आर्टिकल्स थे 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन के। 234 articles in 1956 constitution. There were 250 articles in 1962 constitution, and there are 280 articles in 73 constitution. इस 73 constitution के अंदर 280 articles हैं, और उसके साथ हमारे पास 12 schedules हैं. There are 12 schedules और 280 articles. ये schedules पढ़ने या शेड्यूल पढ़ने हैं. कुछ लोग सेमी फाइनल पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग सेमी फाइनल पढ़ने वाले हैं. एक ही चीज है, स्केड्यूल भी और शेड्यूल भी एक ही चीज. written and you can कुछ लोग होते हैं ना, मैं पिछली क्लास में कहा सर इट्स नॉट शेड्यूल, इट्स अ स्केड्यूल. गलती हो गई मेरे से. मैं आप जितना मर्जी समझ लें, ये शेड्यूल है. सेमी फाइनल, मल्टी नेशनल, देन सेमी फाइनल, राइट, क्वार्टर फाइनल. तो वो बोले कुछ लोग भी होते हैं जो उनको लगता है कि हम ना अनपढ़ है, तो हम कोई शेड्यूल कहते हैं. ठीक है जी, it's not authentic one. कोई मसला नहीं मैडम, हम कोशिश करते हैं इस चीज को सीखने. 280 आर्टिकल्स एंड देयर वर 12. ठीक है, और ये जो तरीका ये होता है कि जो 280 आर्टिकल्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता इंप्लीमेंट ना हो पाए, किस तरह सजा मिलेगी या इनकी क्या पावर है, वो पावर्स आप शेड्यूल्स में लिखते हो. आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2001 के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 214 कि आपने जितनी भी इनकम की है साल बाद आप उसकी रिटर्न फाइल करेंगे. ठीक है जी, ये आपका आर्टिकल 214 कहता है. रिटर्न पे कितना टैक्स पड़ेगा, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होगा, ये शेड्यूल में लिखा हुआ है. यही है इसमें कि 280 आर्टिकल. सर रिटर्न का ऐसा चॉइस नहीं, और 200 नहीं 214 है. 214 में वो नहीं आता लेट वाले को रिटर्न. तो वही है मेरे ख्याल में फाइलिंग वाला है. क्या छोड़ो इंपॉर्टेंट चीज वन में आता है इनकम टैक्स. पीटीसी वो तो दूसरा है. वो हम करेंगे जब हम अपने लॉस पढ़ेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर उसके थोड़ा पढ़ेंगे. इधर कम 280 आर्टिकल्स, 12 स्केड्यूल्स, 280 आर्टिकल्स. कितना इंप्लीमेंट होंगे वो स्केड्यूल्स में लिखा हुआ है. टोटल कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास. क्लियर. और तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है तीनों रिटर्न में. रिटर्न 3 पॉइंट हो गए हमारे पास. तीनों रिटर्न थे. 234 आर्टिकल्स, 250 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स. क्लियर. अब आ जाए फॉर्म ऑफ मोड ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर. पार्लियामेंट्री मोड ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री मोड ऑफ गवर्नमेंट. राइट. फर्क तीनों में था. दरमियान में इट्स पार्लियामेंट. majority parliament. Parliamentary form of government, it was presidential form of government, and it was the parliamentary form of government. तीन चीजें. ये चौथा पॉइंट आ गया. राइट. पांचवें पॉइंट पर आ जाए, रेफरेंडम. नंबर 5, referendum. There was no clause of referendum in 1956 constitution. No clause of referendum. In 1962 constitution, the president of Pakistan had the power to have referendum. In 1973 constitution, आपके प्राइम मिनिस्टर को ये कहा गया है
कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है फ्रॉम द पार्लियामेंट। आपका प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू हैव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में नाकाम हो जाता है तो इट इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू होल्ड रेफरेंडम ऑन दिस क्वेश्चन। वो रेफरेंडम करवाएगा प्रेसिडेंट, और उस रेफरेंडम के अकॉर्डिंगली वो अगर असेंबली तहलील करना चाहता है तहलील कर देगा, रिस्टोर करना चाहता है रिस्टोर कर देगा। That's during the government. ड्यूरिंग द गवर्नमेंट केस। तरीकेकार ये है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर रेफरेंडम का रिजल्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। ये बाइंडिंग नहीं है ऑन द गवर्नमेंट। आपकी गवर्नमेंट चाहे तो इसको इंप्लीमेंट करवा ले, ना चाहे तो ना करे, लेकिन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अगेंस्ट समथिंग और इन फेवर ऑफ समथिंग। यूके में बात कर लें, ब्रेक्सिट के ऊपर रेफरेंडम हुआ, 52% मेजॉरिटी ने कहा कि हमें जी चले जाना चाहिए, 48 ने कहा कि हमें रुकना चाहिए यहाँ पर। Even it was not binding on the government of the United Kingdom. Still, government of United Kingdom went by that Brexit referendum. क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि majority of the people, जो कि जिनके ऊपर हमने गवर्नेंस करनी है, वो एक चीज चाह रहे हैं करने को, तो हमें वो करना चाहिए। Even if it was not binding, लेकिन उन्हें फिर भी किया। सेम पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है, सेम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में भी आता है। अगर कैटलोनिया जो है वो रेफरेंडम के अंदर ये कह दे कि हमें अलग होना है, इवन इट इज स्टिल नॉट बाइंडिंग ऑन मैड्रिड। द पीपल सिटिंग इन मैड्रिड आर नॉट बाउंड बाय द रेफरेंडम दैट इज हेल्ड इन कैटलोनिया। दे कैन अबाइड बाय इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, लेकिन दे हैव द राइट कि उसको वो नेगेट भी कर सकते। व्हाट गेट इट? So ये vote of confidence, is it कोई टाइम पीरियड है उसका, या the member of the parliament can move resolution of vote of no confidence? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज अगेंस्ट यू एंड दे आर अबाउट टू मूव अ स्पेसिफिक बिल ऑफ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो नो कॉन्फिडेंस का मोशन लाने से पहले वो खुद ही मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस दे देता है, राइट? ताकि वो आप कह रहे तजलील से बचे, राइट? कि जी किसी और ने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आया, वो कामयाब हो गया, इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर खुद हार गया है, लेकिन वो खुद फिर अपना मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, अपना बिल ऑफ कॉन्फिडेंस ले आता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अपना बिल प्रेजेंट। और उसके लिए मेंबर्स की फिर वो रिक्वायरमेंट, मेंबर्स की रिक्वायरमेंट मतलब 2/3 और सिंपल मेजॉरिटी। क्योंकि वो आप कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर रहे हो तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आपने तो वैसे सिर्फ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है ना, तो उसको इंटरनेशनली डू विद द अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 62 में उन्होंने किया था कि पहले हाफ होगा फिर उसके बाद 2%। वो डिफरेंट चीज थी, वो भी अमेंडमेंट्स को डील कर रहे थे। ठीक है, करेंगे आपने अमेंडमेंट्स करनी प्रेसिडेंट, हां अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ना वो डिफरेंट चीज है ना, वो तो हमने चेंज करना था तो हमें 2/3, अभी भी यही है, अगर आपने कोई चीज चेंज करनी है तो स्टिल नीड 2/3 मेजॉरिटी। कमिंग बैक टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, यहां तक क्लियर हो गया? मेथड्स ऑफ इलेक्शन पर आते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस, इनडायरेक्ट इलेक्शंस, डायरेक्ट इलेक्शंस। आप जाते हैं, जाकर वोट डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन जो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुआ था, आपका वाहिद इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट का, वो 1965 में हुआ। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन ये था कि सबसे पहले आम लोगों ने अपने 80,000 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने। 80,000 representatives were selected by the common people, 80,000, ठीक है जी, जिनको आप कहते थे बेसिक डेमोक्रेट्स, इसको आप बेसिक डेमोक्रेट्स कहते थे। इनकी टोटल तादाद थी 80,000। ये 80,000 जो थे ना, ये बाद में गवर्नमेंट चूज करते थे कि पार्लियामेंट कैसे बनेगी, गवर्नमेंट में कौन आएगा, प्रेसिडेंट और ये सारा कुछ। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो फिर प्रेसिडेंट ही ऊपर आना था, तो प्रेसिडेंट को चूज करना था इन 80,000, ठीक है? एक तरफ मुस्लिम लीग थी जी, सेंट्रल मुस्लिम लीग, सीएमएल कहते हैं उसे, जिसका उम्मीदवार जी अयूब खान साहब थे, और दूसरी तरफ ज्वाइंट ऑपोजिशन थी। और ज्वाइंट ऑपोजिशन का मसला ये था कि उनके पास लीडर कोई नहीं था, कोई एक बंदा लीड नहीं कर रहा था उनको,
इसलिए उन्होंने मुतफिका तौर पे मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जो है उन्होंने जो है उम्मीदवार नामजद किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा जो है इलेक्शन हार गई और अयूब खान साहब जो है वो प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था कि हम खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वी वर इलेक्टिंग द बेसिक डेमोक्रेट्स, दोस बेसिक डेमोक्रेट्स वर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था और 73 में फिर डायरेक्ट इलेक्शन में आ गए, ये फर्क आ गया। यहां तो कोई मसला है, परेशानी है तो है जी। एनीवन नहीं, आगे चलें। नेक्स्ट थिंग, 6 हो गए पॉइंट हमारे साथ। 7 इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस। There was no concept of Council of Islamic Ideology in 1956 Constitution. There was an institution of Islamic Ideology in 1962, and we made the Council of Islamic Ideology in 1973. 1956 में no Islamic institution, 1962 के अंदर आपके पास इस्लामिक इंस्टीट्यूशन बना, 1973 में आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी बन गया, आपके पास फेडरल शरीयत कोर्ट भी बनी थे 73 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये चीज हमें वापस उसी जगह पर लेकर जाती है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ गई भी तो व्हाई डिडंट यू हैड अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपके पास इतना इंपॉर्टेंट चीज थी तो आपको फिर यहां पर भी एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए था 56 के अंदर, जो आपने 73 में बनाया था, और कोशिश ये करते कि उसको तभी बनाते जो दरमियान में टाइम जाया किया वो ना हो। ठीक है, तो अगर हम ये चीज दे चुके हुए थे तो हमें 56 में कोई ना कोई इस तरह की चीज रखनी चाहिए। आइए अगली चीज पर आते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स पर आते हैं। नंबर 8 एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या था इंस्टीट्यूशन के बाद एक इंस्टीट्यूशन बनाया था इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए, उसका नाम इस्लामिक आइडियोलॉजी इंस्टीट्यूशन नहीं था, लेकिन एक इंस्टीट्यूट था जो कि इस्लामिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बात करता था। एग्जीक्यूटिव पावर, executive power rests with the parliament. 56 the prime minister is the most powerful organ or entity, not organ. 62 the president is the most powerful entity. 72 or 73 the executive power rests with the parliament. ठीक हो गया ये? आगे आ जाइए, प्रेसिडेंशियल पावर्स पर आ जाइए। 9 presidential powers, reasonable presidential powers in 56. Delineate this executive power, you know. Executive power is with the Executive, parliament. the most powerful person. Apart from that, tangible, it's like executive institutions are under the committees. 56 में ये था कि आपके पास कमेटीज थी, आपके पास पार्लियामेंट थी, आपके पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। आपका जो प्राइम मिनिस्टर था, ये जो पार्लियामेंट होती थी वो अटमोस्ट पावर होती थी, वही चीजें चेंज कर सकती थी, वही अपॉइंटमेंट्स कर सकती थी। 62 में एग्जीक्यूटिव पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास थी, प्रेसिडेंट ही पावर्स को एक्सरसाइज करता था, प्रेसिडेंट ही कोई ना कोई चीजें इंप्लीमेंट करता था और प्रेसिडेंट इसको डिस्कस करता था। 73 में वो वापस पार्लियामेंट के पास आ गई। आपने 2010 के बाद जब आपके पास डेवोल्यूशन ऑफ पावर आई तो आपके पास प्रेसिडेंट जो है सेरेमोनियल पोस्ट रहने लगी, लेकिन 62 में जो प्रेसिडेंट था वो सेरेमोनियल पोस्ट नहीं थी, दी मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑफ योर कंट्री था। तो एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूट करने की पावर 62 में सिर्फ प्रेसिडेंट के पास थी और किसी के पास नहीं। 56 और 73 में पार्लियामेंट के पास पावर थी एग्जीक्यूशन करने। ठीक है जी, प्रेसिडेंशियल पावर्स 56 में रीजनेबल थी, 62 में देयर वर हाई प्रेसिडेंशियल पावर्स, 73 रीजनेबल प्रेसिडेंशियल पावर्स। ठीक है जी, आगे आ जाइए, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पर आ जाइए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, there was no such supreme judicial council in 1956. There was no concept of supreme judicial council in 1956. In 1962 there was an institution of supreme judicial council. सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इंस्टीट्यूट 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन में था,
और 1973 के अंदर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कॉन्सेप्ट था, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने कैटेगोरिकली बताया कि यू विल हैव अ सुप्रीम कोर्ट, आपके पास हाई कोर्ट्स होंगी, हर एक सूबे के कैपिटल में एक हाई कोर्ट होगी, आजाद कश्मीर में भी एक हाई कोर्ट होगी, और उसके नीचे लोअर कोर्ट्स होंगी। ये जो डिवीजन ऑफ द कोर्ट्स थी 1956 में हुई ना 62 में हुई, ये सिर्फ 73 में हुई। So there was no concept of Supreme Judicial Council in 56. There was an institute of Supreme Judicial Council in 62, and there was an institution of Supreme Judicial Council in 73, and the powers of the courts were described as well. ये जो power of courts की है ना, ये ब्रिटिश सिस्टम में थी। आपने ब्रिटिश सिस्टम ही उठाया कोर्ट्स का। ब्रिटेन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉमन इज लेदर और लॉर्ड्स की लेदर थी। लेकिन आपने ये किया कि आपने सुप्रीम कोर्ट एक रखी, फिर आपने हाई कोर्ट्स 4 बना दी, हर सूबे में एक हाई कोर्ट रखी, और आजाद कश्मीर में भी एक हाई कोर्ट बना दिया। और उसके बाद मैडम आपको सवाल है, और उसके बाद आपने लोअर कोर्ट्स बनाई जिनको आप ट्रायल कोर्ट्स भी कहते हैं। जी जी, प्रेसिडेंशियल पावर, प्रेसिडेंट की जो पावर थी 56 में रीजनेबल पावर थी, नॉमिनल पावर थी। 62 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो था ही प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए अल्टीमेट पावर था ही प्रेसिडेंट। जी, एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि जहां पर पार्लियामेंट आती थी एग्जीक्यूटिव पावर्स में, जहां पे प्रेसिडेंट की पावर जो नॉमिनल थी, इसके अंदर प्रेसिडेंशियल पावर अल्टीमेट प्रेसिडेंशियल पावर थी। 73 में प्रेसिडेंशियल पावर थी, दरमियान में इंक्रीज भी हुई, ज़ियाउल हक साहब ने इंक्रीज की, फिर मुशर्रफ साहब ने भी इंक्रीज कर दी, फिर 2010 में 18th अमेंडमेंट के बाद वो वापस जो है वो कम हो गई। ठीक है जी, आगे आ जाए, पार्लियामेंट पर आते हैं, हाउस पे आते हैं। नंबर 11 हाउस। 56 और 62 वाज यूनिकैमरल लेजिस्लेशन, एक हाउस था 56 और 62 में। 73 के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेशन आई, नेशनल असेंबली और सेनेट दो हाउसेस बने थे 73 में। देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली इन 56 62, वहां से सिर्फ एक नेशनल असेंबली हुआ करती थी, बाइकैमरल नहीं था, यूनिकैमरल था। 73 में बाइकैमरल आया। ठीक है जी, 62 में क्या था? यूनिकैमरल। आगे चलें जी, फंडामेंटल राइट्स। It was known as the Senate or National Assembly? नेशनल असेंबली। National Assembly. फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1956 में हर बंदे के पास थे। लेकिन इसमें सबसे मजे की चीज ये थी कि 56 की कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदा तौर पे बात हो गई थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है ना, इनके ऊपर सस्पेंशन लग गई। The civil and political rights will be suspended in case of emergency. Civil and political rights were ensured in 62. Civil and political rights are ensured in 73 as well. Article 8 to 28. ये जो 21 आर्टिकल है, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को डील करते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये वाहिद आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के जो अमेंड भी नहीं हो सकते। 8 to 28. Article 8 to 28. The fundamental human rights articles, they cannot be amended in the Constitution of Pakistan. 62 में सिविल पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर करने की बात की गई, 56 में भी सिविल पॉलिटिकल राइट्स को तो आपको दी गई सिविल पॉलिटिकल राइट्स, लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी कहा गया सस्पेंशन है। इसकी रीजन क्या है, तो बता सकते हैं मुझे? कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा। 56 के अंदर ही लिखने की क्या जरूरत थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं? क्योंकि 54 के अंदर, क्योंकि 54 के अंदर आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी नाम की एक चीज दे चुके थे, राइट? आप डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी दे चुके हुए थे, और आपके फिर आपकी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने कहा कि जी नेसेसिटी को देखते हुए सस्पेंशन भी हो सकती है। तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात कहीं ना कहीं लिख दी कि हाँ भाई आइंदा से भी मार्शल लग सकते हैं, सही? आप मान गए इस चीज को कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि 54 में आपने डॉक्ट्राइन नेसेसिटी दे दिया हुआ। ठीक हो गया? हम पढ़ेंगे अभी डॉक्ट्राइन नेसेसिटी भी थोड़ी देर, यहां तक क्लियर हो गया? तो मसला है, कोई परेशानी तो और जी नहीं जी? फंडामेंटल राइट्स हो गए 12। 62 में वर अश्योर्ड। Yes, we were sure.
वहां तो सिर्फ पावर्स का मसला था ना कि पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी, बाकी सिविल पॉलिटिकल राइट्स तो थे ही नहीं। अच्छा ये गलत सवाल है कि वो मिले कि नहीं मिले, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि मिलेंगे। ठीक है, 1973 के अंदर ना, आप अल्लाह खैर करे, जब आप लोग सीएस से चले जाएंगे ना, आपके साथ ना 8 ऐसे लोग भी आएंगे जिनको आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा, और वो होंगे फौजी। ठीक है, और आपको मजीद बात तो वो आपसे भी ऊपर होंगे। 1973 के अंदर एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था भाई मेरे, ऑफिस मेमोरेंडम ना कानून, there is not even written in the constitution, it is not even written in the rules of FPSC। ऑफिस मेमोरेंडम आया था, क्लर्क ने जारी किया था कि आज के बाद से 8 लोग आर्म्ड फोर्सेस के सिविल सर्विस में जाएंगे। आप 73 से आज 2018 आ गया है, आप उस कानून को ना चेंज कर सके हैं, अगर चेंज नहीं करना तो भाई इनकॉर्पोरेट ही कर लो उसे अपने कानून में, वो भी नहीं कर सके। ऑफिस मेमोरेंडम ही चल रहा है अभी तक, ये आपके कानून का हवाला है। और आप में से कोई बंदा इंक्लूडिंग मी ये जुर्रत नहीं करता कि हम जाएं जरा अदालत में पूछें उससे, हाँ जी फौजियों से आप किस कानून के तहत आते हैं सिविल सर्विसेज के अंदर, फिर आप इम्तिहान भी नहीं देते, आप सिर्फ इंटरव्यू देते हैं आपके। अच्छा इंटरव्यू देने के बाद भी सिर्फ 3 महकमों में जाना उन्होंने, या फॉरेन सर्विस में, या पुलिस में, या पीएस में। ये ऑफिस मेमोरेंडम चल रहा है 73 का। हाँ जी 73 में मैडम एक मेमोरेंडम आया, मेरे जैसे किसी क्लर्क ने ले लिया मेमोरेंडम, जो वेला बैठा हुआ कुछ करने को नहीं था, उसने कहा जी आए सर आपको एक चीज दिखाता हूं, ले जी तक आइंदा से 8 फौजी जो हैं सिविल सर्विस में जाएंगे। मैं मर गया तब तक, बंदा ही मर गया बेचारा जिसने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया था, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान की सिविल सर्विस में चल रहा है, और आप बेचारों की 8 सीटें खा लेते हैं। Sir, it's not like he did it on his own. Someone must have dictated it. किया तो होगा, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ भाई मेरे, अगर आपने किया भी था उसको तो कानून का तो हिस्सा बना लो, ओके किताब में लिख दो, कानून का हिस्सा बना दो। हम कुछ नहीं कह रहे आपको, हम तो ये कह नहीं रहे कि खत्म करो, हम तो कह रहे हैं भाई इसको कानून बना दो बस। मेमोरेंडम भी चल रहा है अभी तक। हम 73 के अंदर हमने सिंध को अर्बन रूरल में डिवाइड किया, वो अभी तक वही चल रहा है। अच्छा आज तक नहीं समझ आया कि सिंध अर्बन रूरल में क्यों डिवाइड हुआ, पंजाब क्यों नहीं हुआ, बलूचिस्तान क्यों नहीं हुआ, AWFP क्यों नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है राइट। वो हमारा इंटरव्यू की मैं तैयारी कर रहा था, लड़का आया सर आपको पता है तुम्हारा बहुत मुकाबला है सिंध का, मैंने कितना मुकाबला है, कहता सर 43 बच्चे पास हो गए इसका, मैंने कितने, तो 43, मतलब सीटें कितनी, तो सर 40। बढ़िया, यहाँ पंजाब वालों को लाले पड़े हैं ठीक है, और मैं तुम्हें अच्छा उसको 46 में से 40 में भी बड़ी टेंशन लग रही थी, सर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो सीटें ज्यादा होती थी लोग कम होते थे। टेंशन वाली बात है, मैं कह बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है, मैं कह बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ जी बस मैं बहुत परेशान हूँ, अल्लाह की देन है। यहाँ पे लाले पड़े पंजाब वालों को, पता नहीं नंबर कितने आते हैं, एलोकेशन मिलती कि नहीं मिलती, वो उस पे टेंशन में है कि 46 में तो 40 पे आऊंगा कि नहीं आऊंगा, अल्लाह की जान। वैसे भी कहते हैं ना डोमिसाइल आपको सिंध को आना चाहिए। नहीं मैडम कभी नहीं किया, नहीं आप उसको यहाँ पे आप पहुंच ही गई ना बगैर किसी सिफारिश के, ठीक है, तो अल्लाह कहता है आप आगे भी जीते हैं, अपने ऊपर एतमाद रखें। मुझे मसला पता कहाँ पे होता है, जब सारी तालीम आपकी यहाँ की होती है और डोमिसाइल बस वहां का होता है, ये मसला है। आप कहें कि भाईजान मैंने सारी तालीम ली भी यहीं से है, फिर डोमिसाइल भी यहीं का है, चलो जी जस्टिफाइड है मुकाबला करें, सारी तालीम ली यहाँ पर करने नहीं यार ओ भाई ये मसला है ना, तो मुकाबला मतलब पूरा करो भाई। नहीं जी मैं तो रोड स्कॉलरशिप पता है ना आपको, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान को एक मिलती सर, एक कोटा है पाकिस्तान में सर, एक स्कॉलरशिप मिलती। एक बलूचिस्तान में लड़के को मिली थी, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने मुझे अपना एसओपी भेजा, कहता भाई एसओपी देख मेरा, मैं कहा यार क्या एसओपी लिख दिया। अब एसओपी क्या था, मैं जब सुबह उठा करता था तो बम्बारी बम गिर रहे होते थे, इस माहौल में तो मैं पला बड़ा हूँ, इस माहौल में लिखने का इतना मतलब कि तूने अच्छा उसकी सारी तालीम एचएस की थी यहाँ पे बहुत, वो पढ़ा भी यूनिवर्सिटी लम्स का, इधर का गवर्नमेंट कॉलेज का लम्स का पढ़ा हुआ था, बस क्या था कि वो रहता वहां, उसका डोमिसाइल वहां का था, उनको क्या पता नहीं कहां पे ढूंढेगा, उसने भेजा उन्होंने कहा यार इतनी मतलब की टेंशन कितनी पड़ती रहे यार। और वो जी कमेंट को क्या नाम है, मीडिया आगे पीछे पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया जी, क्या बात है जी आपकी, वो ये वो अल्लाह की शान है। आएंगे अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे,
हम सिर्फ 18 से ऑनवर्ड करेंगे तो मैडम ने मुझे कहा 18 से आगे करवानी है तो पीछे नहीं करवानी। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये 8 हम करेंगे इवेंट्स करेंगे, पीछे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 18 की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 18 की बात क्या हो रहा है। आप में से किसी की दूसरी अटेम्प्ट तो नहीं? दूसरी है? अच्छा कोई बात नहीं, मेरी भी दूसरी परेशानी हो रही, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि दूसरी अटेम्प्ट है। मेरा ना साइकोलॉजी का पेपर चल रहा था। अच्छा मुझे नहीं पता बाकी के साथ क्या, अगर मुझे पेपर नहीं आ रहा होता तो मुझे हंसी आनी शुरू होती। अच्छा लोग परेशान होते हैं, मुझे हंसी आनी शुरू होती। अच्छा मैं अब बैठा हूं, हंस रहा हूं, कुछ नहीं आता था पेपर में, 3 सवाल आते थे। अब मैंने कहा 3 भी वो आते थे कि 2 पूरे आते थे, एक कहीं ना कहीं से मैं घुमा के समझ सकता था कि ये आ गया, चौथा बिल्कुल ही नहीं आता। सो मैं बैठा हूं, मेरे साथ ही बंदा बैठा हुआ, जरा बहुत ही उत्सुकता से बैठा हूं, मिल लेते हैं। मैंने कहा अच्छा है कोई बात, मैंने से तो मैं क्या हाथ ही में रखा, बोल नहीं रहा, देख लो कहता हूं आप परेशान हो भाई, तो बस देखते हैं इजी। मैं लिखता जा, थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज किया कि उसका पेपर ही पीछे वाला देख रहा और इसका पेपर जो मेरे पीछे बैठा हुआ ये देख रहा। तो भी मैं बेसिकली 4 पीपल डूइंग द सेम पेपर और मेरे किधर बैठा हुआ बंदा बिल्कुल ही जरा सोता ऐसे करके ना बैठा पेपर को देख रहा, खाली पेपर, खाली शीटें, खाली पेपर। मुझे जाने बहुत ही तरस आया, इसलिए मुझे पूछी ना उसको कितना तरस आया मुझे देख के उसको, मतलब ज्यादा धर्मशाला खोल ही ली है, ठीक है तो मैं इसको भी थोड़ा बहुत करवाई दूं, चल भाई तू थोड़ा बहुत कर दे। मैंने कहा कहता हां जी। अच्छा उसने हार्डली 1 सेकंड नजर लगाई, वो कैसे कर रही थी, मुंह से उधर कर, मैंने अपने तो भी मेरे बड़े नखरे नहीं देखना ना देख पाई। अच्छा थोड़ी देर बाद ना हार्डली 10 सेकंड्स के बाद ही स्टार्टेड वॉकिंग, कोई इन्विजिलेटर था जो खाली शीट और पेपर रख के ना जगह पे बैठा देख रहा था। मुझे नहीं हुआ कि वो कौन है, मुझे लगा पेपर का देख करने वाला बंदा था। मुझे पेपर की टेंशन भूल गया, सारे पेपर के अंदर वो मुझे देखता था, मैं उसको देख के सेलेक्ट करता था और इतना मुझे शुगर लगा सारे पेपर के अंदर, मुझे पेपर छोड़ दिया मैंने, मैं कहा यार आप देखते पेपर में क्या होता है, लेकिन वो सारे पेपर की टेंशन होती जब वो देखता था मुझे सीरियस वो भी इस तरह का मैं क्या किसी को नहीं आता था, आप नजर आ रहा है किसी को नहीं आता, वो बड़ा ही कितना अच्छा मैं बड़ा परेशान था जब वो पेपर नहीं आता, तो बाद हंसते खेलते ही पेपर हो पास हो वो किसी तरह चौथा सवाल कर छोड़ दिया मैं। हां मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गया था लेकिन छोड़ दिया। आई हैव नेवर बीन अकाउंट्स पर्सन, आई एम प्रैक्टिसिंग लॉ, तो मैं अकाउंट्स वाला बंदा ही नहीं था और मुझे नफरत थी अकाउंट। हमारे साथ लड़की तैयारी करी थी, उसको ना पुलिस का बड़ा नफरत थी, बेचारी डर करता पुलिस में चली और वो हमें नहीं पता कि वो कैसे सर्वाइव कर रही है, लेकिन अभी तक वो कर रही है सर्वाइव, बहुत डर लगता था उसे। मुझे सबसे बड़ी टेंशन थी यार मुझे कुछ मिल जाए, अकाउंट्स ना मिले। आई हैव नेवर बीन अ मैथ्स पर्सन और नंबर्स से मुझे नफरत है। और उसके बाद अच्छा मैंने बाकी अटेम्प्ट भी दे सकता था, मैं अभी भी दे सकता हूं, लेकिन वैसे ये जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी आ गई है ना, इसी टेंशन से नहीं लेती, इतनी बुरी लगती मैथ्स में। ये तो सर एक्चुअली में आपका मेजर क्या था, आपका सीनियर था? हां एक्चुअली में मेरा वो ऑपरेशन मैनेजमेंट बिजनेस है सर। हां तो बिजनेस के अंदर कौन सा मैथ्स पढ़ता था? मैथ्स तो कभी भी मेरा नंबर नहीं था, आई हैव नेवर बीन द नंबर्स पर्सन, मैथ्स वाला कभी मेरा टेंशन। अच्छा यही अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट क्या है? 18th अमेंडमेंट व्हाट इज 18th अमेंडमेंट? डेवोल्यूशन ऑफ पावर, बस 83 the biggest amendment that has ever happened in the constitution of Pakistan, 18th amendment। ठीक है जी, छोटी छोटी चीजें लिखते हैं इसके लिए। It was passed from the National Assembly on 8th April 2010, 8/4/2010। It was presented in the Senate on 15 April 2010 from National Assembly 8/4/2010, Senate 15/4/2010, and the President of Pakistan signed on 19/4/2010 and made it the part of the Constitution of Pakistan. So the 18th Amendment became the part of the Constitution of Pakistan on 19/4/2010। ठीक है जी? अब आप ना हिम्मत करें और चीजें एक एक लिखते जाएं। 1904 को क्या हुआ जी 1904 became the part of the Constitution. President of Pakistan Asif Zardari signed on the amendment. Number one, the first thing that happened, the first amendment that happened, जहां-जहां Constitution में जनरल ज़ियाउल हक का नाम लिखा हुआ था, it was removed. The name of the General Ziaul Haq was removed from the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Right?
Number 2, NWFP was renamed to Khyber Pakhtunkhwa. So ये amendment थी कि या अमेंडमेंट इसी अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने एक हरकत की छोटी सी, जिसकी वजह से बाद में चेंजिंग आई। उन्होंने सिंध को, सिंध लिखा H के साथ, SINDH, और बलूचिस्तान को BALO के साथ लिखा, U की जगह। तो फिर सिंध के असेंबली में बिल पास हुआ 2012 में, और बलूचिस्तान असेंबली में भी पास हुआ, जिसके बाद उन्होंने फॉर्मली सिंध में H डाल दिया और बलूचिस्तान को O लिखना शुरू कर दिया। We don't consider it as the part of the amendment, but it triggered something in 2012. तो 2012 में सिंध जो है वो एक्ट आया, सिंध एक्ट 2012 सिंध असेंबली से पास हुआ, जिसमें उन्होंने फॉर्मली BH कर दिया, उसको H उसमें ऐड कर दिया, और बलूचिस्तान को BALU की जगह BALO कर दिया। ठीक है जी। हम इसको ये नहीं कह सकते कि it was somehow written in the amendment, but the notification that was issued after the amendment, उसके अंदर हमने इस तरह लिखा, तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने फिर इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने अपने जो है सूबों के जो है वो अंदर। ठीक हो गया। तीसरी चीज, the legal framework order of General Musharraf was repealed. Legal framework order of General Musharraf, LFO. लोचन आप किसमें लिख जाता है वो सिंध, यस, सिंध H के साथ लिखा जाता है एंड पे, पहले सिंध के साथ एंड पे H नहीं आता, सिर्फ डी आता है। LFO जो आपके पास लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, 17th अमेंडमेंट जो हुई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज रिपील्ड, खत्म कर दिया गया था उसको, जिसके अंदर प्रेसिडेंट की पावर दोबारा इंक्रीज कर दी गई थी। मुशर्रफ ने प्रेसिडेंट की पावर को दोबारा इंक्रीज कर दिया था। तो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चले गए थे। इतनी ज्यादा पावर हो गई थी गवर्नमेंट को अपने उसके पास, मुशर्रफ साहब के पास, तो वो भी हमें जो है तो हमने खत्म कर दिया। अगली चीज हमने क्या की, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के थर्ड टाइम इलेक्ट होने पर जो पाबंदी लगी थी उसको खत्म कर दिया। नंबर 5, Prime Minister and the Chief Minister, the ban on the election of the prime to be elected as third time president or the Chief Minister, it was repealed. ठीक है जी, बैन लगा हुआ था, यानी कि आप जितनी मर्जी दफा प्राइम मिनिस्टर बने, जितनी मर्जी दफा जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है बने। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ऑफ जनरल मुशर्रफ, ये थी 17th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये खत्म कर दी गई थी इन द 18th अमेंडमेंट। क्या क्लियर हो गया? अगली चीज पर लिखें, holding the constitution treason, high treason वाला जो कॉन्सेप्ट था इसके अंदर आर्टिकल 6 जो था उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बात की थी। ठीक है, अगर आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा है, यानी कि जो मुशर्रफ साहब ने तोड़ा था, तो उसके ऊपर जो हाई ट्रीजन का केस बनना था उसके ऊपर बात हुई थी कि आइंदा के बाद जो हाई ट्रीजन करेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, उस पर हाई ट्रीजन का केस बनेगा। तो ये बात हमने 18th अमेंडमेंट के अंदर की। अपना आर्टिकल बिल्कुल मौजूद था, पहले ही मौजूद था, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, उसमें छोटी छोटी अमेंडमेंट्स कैसे करनी है, किन किन तरीकों के ऊपर आप उसको अंडर ऑब्जर्वेशन लेकर आ सकते हो किसी बंदे को जिसने आर्टिकल 6 की वायलेशन की है, दैट वाज मेड पार्ट ऑफ द अपना क्या नाम है इसका 18th अमेंडमेंट 19 अपना 2010। एक लफ्ज भी ऐड किया था उन्होंने इसके अंदर, एबियांस, राइट? क्या स्पेलिंग होती है? ये वर्ड भी ऐड किया था आपने आर्टिकल 6 के अंदर। आपने आर्टिकल 6 को किस तरह इंप्लीमेंट करवाना है, क्या सारा कुछ करना है, वो उस पर भी बात हुई थी, और एविडेंस के ऊपर भी बात हुई कि आपने अगर इसके अंदर अगर आपने उसके साथ आप इसको इस तरह मतलब लें कि अगर आपने आर्टिकल अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया या कोई खिलवाड़ किया उसके साथ, तो फिर भी आपके ऊपर हाई ट्रीजन का जो केस जो बनेगा। ठीक है जी। The Council of Common Interest was reinstituted. Number 6, Council of Common Interest was reinstituted और it was made compulsory कि ये हर 90 दिन के अंदर अंदर मिलेंगे जरूर। They had to have a meeting in every 90 days. The CCI, the Council of Common Interest, was reinstituted and it was made compulsory for a meeting of CCI in 90 days. Right? Number 7, a judicial commission was made to
to recommend the appointments of the Chief Justice and the judges of the Supreme Court. Judicial Commission was made to recommend the appointment of the Chief Justice and the judges of the Supreme Court of Islamic Republic of Pakistan. ठीक हो गया जी? आठवीं चीज, the Chief Election Commissioner should be appointed by the consultation of both the opposition and the government. Chief Election Commissioner will be appointed with the consultation of the opposition and the government. अगली चीज थी establishment of Islamabad High Court. Establishment of Islamabad High Court. अच्छा, इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद था, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद। ये नेक्स्ट अमेंडमेंट आपने दोबारा की थी, उसके अंदर फिर आपने इसका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट किया था। 18th अमेंडमेंट इसका नाम हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है जी, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद। और इसके अलावा आपने मेंगोरा और तुर्बत में हाई कोर्ट के जो है बेंचेस बनाए थे, मेंगोरा एंड तुर्बत। आपने हाई कोर्ट के बेंचेस बनाए मेंगोरा और तुर्बत के अंदर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया, सॉरी हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद बनाया, और मेंगोरा और तुर्बत के अंदर आपने CEC है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, CEC है। ये अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ओह सॉरी, चीफ इलेक्शन कमीशन establish of Islamabad Court। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और मेंगोरा और तुर्बत के अंदर जो हाई कोर्ट के बेंचेस हैं वो आपने जो बनाए थे। प्रोविंशियल हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट पे, हां जी, पेशावर हाई कोर्ट के बेंचेस मेंगोरा में बैठेंगे और तुर्बत में बैठेंगे। तुर्बत बलूचिस्तान और वो क्वेटा हाई कोर्ट होगी, और वहां से वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सॉरी, और ये वहां पर, ठीक है जी। और आखिरी चीज आपने जो इसके अंदर लिखी वो राइट टू एजुकेशन पर बात की, कि जो राइट टू एजुकेशन है इट विल बी कंपल्सरी टिल द एज ऑफ 16 years। 25A, 25A, आर्टिकल 25A, right to education is compulsory for the children up to 16 years of age। ठीक है जी, ये तो अमेंडमेंट्स हुई आपकी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद तकरीबन 10 से 12 मिनिस्ट्रीज थी जिनको आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर के अंदर या खत्म किया या उनका नाम चेंज किया, ठीक है जी। तो उसमें से पहली थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद आपने डिवाइड कर दिया सूबों के, राइट। दूसरी थी मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, इसका नाम आपने चेंज किया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में, और इसको फेंक दिया नीचे प्रोविंसेस के पास। तीसरा, आपने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को चेंज किया और उसका नाम आपने कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का नाम चेंज किया आपने मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, और इसको फेंक दिया नीचे प्रोविंसेस के पास। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ became the Ministry of National Health Services। Ministry of Health became Ministry of National Health Services, Regulation and Coordination। Ministry of Health was divided into the name of the Ministry of Health was changed to Ministry of Health Sciences, Ministry of National Health Sciences, Regulation and Coordination। Ministry of Special Initiatives, इसको आपने abolish कर दिया। You abolished the Ministry of Special Initiatives। अब नोट्स चाहिए? Yes sir। Abolish Ministry बड़ा of आसान है, मतलब बड़ा ये जी नोट्स मिल जाएं सारे काम जो मिल जाएंगे नोट्स आप देखिए लिखिए नोट्स मिलेंगे, वो कंसल्टेशन के लिए जी। सवाल कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ इनिशिएटिव्स को अबॉलिश कर दिया आपने टोटली जी। What was it responsible for? हां, What was it responsible for? मिनिस्ट्री ऑफ इनिशिएटिव्स, कोई भी इनिशिएटिव यार छोटे मोटे होते उन्होंने ऐसे, देखो मुशर्रफ दौर की बात है, ठीक है जी, और ये गंजों के दौर की बात है, बंदे कहीं ना कहीं तो लगा देते हैं, नई मिनिस्ट्रियां बन रही, मिनिस्ट्री ऑफ इनिशिएटिव्स, ठीक है जी। अब वो क्या काम था, उसको काम नहीं था वो। अच्छा, वो इनिशिएटिव किस चीज में लेना था ये भी पता नहीं, एजुकेशन में लेना तो उसकी लेना मिनिस्ट्री, रेलवे में लेना उसकी लेना मिनिस्ट्री,
तो हर चीज के लिए ज्यादा मिनिस्ट्री थी, बंदा बाचलर ने कहा जी नहीं मिनिस्ट्री बनाओ, क्या करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इनिशिएटिव्स, तो उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर। यहाँ पे आपने नंबरिंग कर दी नहीं, हर टाइम पीएम और सीएम का बैन हुआ तो वो यहाँ पे आपने लिखा नहीं है पर आपने लिखवाया है। हाँ, शायद हो सकता है कि नंबर शायद ऊपर नीचे कर दिया हो। मुझे लगा मैं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड मैन पावर became Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development. Ministry of Labour and Manpower became Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development. कौन है जी इनको लीड कर रहे हैं आजकल? Overseas Pakistanis। अभी कुछ नहीं करेंगे, परेशान ना हो, अब सिर्फ जवाब मांगो। खान साहब आपने अपने अपने जानने वालों को लगाया है तो वो जवाब तो दे। वो किधर है, वो जो कह रहा था $200 अगले दिन खान साहब ले आएंगे वापस, रात से ही, जिस दिन इमरान खान पाकिस्तान का उठाएगा $200 पाकिस्तान में आएगा, $100 उनके मुंह पे मारेगा, $100 आप पर लगाएगा। किधर है वो? जिंदा है? चले जी अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरे $200 आ गए। कोई नहीं यार, क्या हो गया, हो जाती हैं गलतियां इंसानों से यार, तुम क्यों हंस रहे हो? हंसो नहीं तो बचो। ठीक है जी, आई जी मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट अबॉलिश कर दी गई फेडरल लेवल। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज को मर्ज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। अगली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज को मर्ज कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर अबॉलिश हो गई एट द सेंट्रल लेवल। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर को भी अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश कर दिया जी, पॉपुलेशन वेलफेयर को अबॉलिश कर दिया। पॉपुलेशन को नहीं, सोशल वेलफेयर को भी अबॉलिश कर दिया गया। उसमें अभी तो भी है जी, सेंटर की बात, सेंटर में अबॉलिश कर दी। ठीक है जी, और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बिकेम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बना दिया गया एट फेडरल लेवल, और ये प्रोविंसेस के अंदर दे दी गई। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया गया एंड एट द फेडरल लेवल, एंड इट वाज गिवन टू द provinces. Ministry of Tourism became Pakistan Tourism Department. Ministry of Tourism became Pakistan Tourism Department. Pakistan Tourism Development Corporation. Pakistan Tourism Development Corporation. Ministry of Women Development. क्या किया इसका? जी इधर ही है नहीं, अबॉलिश हो गया, अबॉलिश कर दिया। विमेन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री को अबॉलिश कर दिया गया। यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी अबॉलिश हो गई सेंटर के अंदर, और आखिरी रह गई एक मिनिस्ट्री, ज़कात और उशर की मिनिस्ट्री। इट वाज गिवन टू द प्रोविंसेस, अबॉलिश्ड एट द सेंटर, गिवन टू द प्रोविंसेस। विमेन डेवलपमेंट अबॉलिश्ड एट द सेंटर and youth affairs abolished at the center. ये था जी भाईजान पार्लियामेंट, इतनी बड़ी अमेंडमेंट था, राइट? According to this amendment, right now, this is incorporated in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. अब जो चीजें हो रही हैं, चल रही हैं, वो according to this Constitution, according to this amendment है। Sir, इसको रिवाइज करने में क्यों कंप्यूटर है आजकल? करंट अफेयर्स ने 18 अमेंडमेंट को रिवाइज करने की उसमें चीजें बड़ी, दो तीन चीजें देखते हैं। उसमें ये देखने वाला है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्ट्रीज आपने प्रोविंसेस को दी हैं, वो सेंटर में भी कहीं ना कहीं मौजूद। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी प्रोविंसेस भी पावर से दी। कुछ मिनिस्ट्रीज जो आपने सेंटर में अबॉलिश कर दी, आपने नीचे दे दी, ठीक हो गया, प्रोविंसेस के पास चली। लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज जो आपने डिवाइड की, जिसमें आपके पास ज़कात और उशर की कमेटी अबॉलिश हो गई, नीचे चली गई आपके पास। एजुकेशन की मिनिस्ट्री आ गई,
अब हायर एजुकेशन कमीशन का सेंट्रल ऑफिस फिर भी इस्लामाबाद में है, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन फिर भी डिवाइड हुआ हुआ है प्रोविंसेस के अंदर, तो उनकी पॉलिसीज कहीं ना कहीं जो ओवरलैप कर जाती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, है जी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रिंसेस के पास है, प्रिंसेस के पास इधर तो है भी, मैं इसको चेंज नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ फेडरल में खत्म कर दिया, फेडरल में अबॉलिश हो गया, यहाँ पर प्रोविंसेस में स्टिल इज देयर, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है, सही से मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम वहां पर आ रही है कि जहां पर ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स आती है और ओवरलैपिंग ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जो पॉलिसीज आती है, कि आपको सेंटर कुछ पॉलिसीज देता है और प्रोविंसेस कहते हैं कि ये पॉलिसीज हमारे पास नहीं है, हम नहीं मानते इसको, हम अपनी पॉलिसीज के हिसाब से चलेंगे। एचईसी का फंड आता फिर भी सेंटर से ही है प्रोविंसेस को, वो डिवीजन ऑफ फंड्स के ऊपर भी लड़ाई होती है। इसी तरह मजीद बड़ी प्रोविंसेस अपनी मिनिस्ट्रीज हैं जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि आ तो गई है प्रोविंसेस के अंदर, लेकिन वो भी चल रही है ऊपर से फेडरल से, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें अमेंडमेंट करें मजीद, या इसको बिल्कुल खत्म करें या इसको वापस ले। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी डिस्ट्रक्ट हो रही है ना। एब्सोल्युटली, क्योंकि जब आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं ना, पंजाब की पॉलिसीज होता है डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ केपी, राइट, लेकिन अल्टीमेटली दे आर गवर्न्ड थ्रू द सेंटर, तो फिर प्रॉब्लम आएगा, वो कहेंगे भाई ना अगर आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में दे ही दी है तो फिर आप हमें पूरी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दें, हमें सारी चीजें दे देंगे तो सारी वापस ले लें, ये प्रॉब्लम आ रही है। सीसीआई में ये हुआ ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये हुआ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अभी पढ़ने लगे थे वैसे आगे, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर प्राइम मिनिस्टर होता है जी, 4 आपके पास चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस होते हैं और 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर्स बिठा लें, ये प्राइम मिनिस्टर का हिस्सा। शाहिद मकान अब्बासी साहब ने क्या किया, उन्होंने तीनों थे ना मिनिस्टर्स वो पंजाब से बिठाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि सीसीआई के अंदर पंजाब उतर आ गया, तो पंजाब के राइट्स के ऊपर ज्यादा बात होने लग गई, तो फिर रोना पड़ गया। यही काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से क्या फायदा कि वहां पर फिर पंजाब के लोग बैठे, उन्होंने कहा कि इसमें हमारे के कसूर है, मिनिस्ट्री सारे पंजाब की फेडरल के अंदर, राइट। तो ये प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, हमारे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं, हमें यही काम अभी किया, हमने 18 अमेंडमेंट कर तो दी, लेकिन हमने फिर डेवलपमेंट ऑफ पावर करनी कैसे थी उसको वो हमने नहीं माना। हमने 73 के अंदर ये लिख दिया कि एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है और लेजिस्लेशन अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिलजुलते भी हैं कि जुडिशरी के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो प्रूफ कौन करता है, पार्लियामेंट करती है, तो फिर भी जुडिशरी तो अलग ना होगी, वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट तो है पार्लियामेंट के ऊपर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर पहले 3 आर्टिकल्स ये साफ बता देते हैं कि एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, लेजिस्लेशन की क्या पावर है और जुडिशरी की क्या पावर है। हमने कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर तो की है, लेकिन उस सेपरेशन ऑफ पावर उस तरह इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते जिस तरह हमें करना चाहिए। सेम इसी तरह 18th अमेंडमेंट के अंदर कि हमने डेवलूशन ऑफ पावर तो कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं हमने सेंटर में भी पावर रखी, और उस सेंट्रल पॉलिसी से जब हमने प्रोविंसेस को चलाने की कोशिश की तो प्रोविंसेस ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया कि जी हमें तो अपनी पावर दी हुई है, उन्होंने कहा जिंदगी सेंटर से चल रहा है, उन्होंने कहा आप वापस ले जाइए यहाँ पे। अब वो दोबारा बात चल रही है कि आज को रिपीट करें या इसमें मजीद अमेंडमेंट करें। जैसे पीएसडीबी प्रोग्राम की फंडिंग होती है सारी पूरे प्रोविंसेस की बात बिल्कुल ऐसी, एनएफसी की बात कर लें, ठीक है, एनएफसी की बात कर लें, इसमें सारे फंड्स अल्टीमेटली आपके ऊपर से ही है। मैं पंजाब हेल्थ उसमें से अपना हेल्थ डिपार्टमेंट से, तो हमारे पास जितने जो प्रिवेंटिव प्रोग्राम चल रहे हैं उसकी फंडिंग सारी फेडरल कर रहे हैं, कंट्रोल हम कर रहे हैं। अब ये अगर खुदा ना खास्ता आप लोग काम करेंगे ना काम हो जाए, तुम इल्जाम किस पे आप पे, क्योंकि जी ये 18th अमेंडमेंट के बाद हमने तो आपको राइट्स दे दिए हमें, तो भाई ये पूरे राइट्स दें फिर आपके पास वापस ले लें हमसे राइट्स। यही अब एचईसी पंजाब का एचईसी है उसको अबॉलिश करने लगे, उन्होंने कहा ये चीज को अबॉलिश करें नहीं वापस जाएंगे, तो इस तरह के इश्यूज हैं छोटे मोटे। आपके ओपिनियन में इसका बेहतर वे क्या है कि सेंट्रल के पास चली जाए कि वापस या प्रोविंसेस के पास? या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल है। अब आप स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है, अल्टीमेटली सेंटर से गवर्नमेंट तो हो ही रहेगी, रिपब्लिक है, सेंट्रल पावर है उसके पास, लेकिन हर स्टेट इंडिपेंडेंट, सेंटर में पावर रखें, आप डिफेंस रखें सेंटर में, आप फॉरेन पॉलिसी सेंटर में रखें, सारा कुछ रखें, लेकिन डेवलपमेंट पावर नहीं करें, बताएं कि कहां-कहां पावर है, कहां-कहां सेगमेंट आपने इसको जो है चीज को चेंज करना है। हमने पावर तो दे दी है, लेकिन उसको हम एक्सरसाइज नहीं। मेरा भी यही ख्याल है प्रोविंसेस के पास होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर देखें ना तो यहाँ पे बैठ के डीजी का फैसला नहीं कर सकते, हेल्थ डिपार्टमेंट में हम बैठ नहीं, और इस्लामाबाद में बैठ के वो कैसे कर लेंगे, आप पाकिस्तान में कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन सर इंस्टीट्यूशंस की जो कैपेसिटी है वो भी तो बिल्ड करनी चाहिए, ऐसे ही सिर्फ उनको पावर्स दे दिया तो वो कैसे इसको आगे इंप्लीमेंट करेंगे? देने का उसकी बात है, मैडम 73 से अभी तक तो आप सेंटर नहीं चला रहे थे ना। जी सर।
जब आपने सेंटर में चला लिया तो आपने ऑब्वियसली आपने गवर्नेंस जो करनी होती आप ऊपर ओवरसी तो करते ही हो, ये तो नहीं ना है कि ओवरसी भी करना छोड़ देना सेंटर में, ओवरसी तो फिर भी करेंगे। जहां पे कोई प्रॉब्लम होगी आप उनको बुला लीजिए, अदालत में बुला लीजिए, आप उनको आप जवाब देकर रहे। अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उनको जब अगर आप वापस नहीं देंगे गवर्नेंस की तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। कराची ऑपरेशन के अंदर रेंजर्स ने ठीक है जी बहुत अच्छा काम किया, क्या ही अच्छा होता है साथ पुलिस को भी ट्रेन कर देते कि खुद जब वापस जाते तो पुलिस वहां पे रहती तो हालात उसी तरह के रहते। आपने 92 के अंदर 2 महीने का ऑपरेशन करने गए थे ना जनाब बेग साहब, 2 महीने का ऑपरेशन, अभी तक 11 बटालियन बैठी वहां पे आके। हमने ये किया, हमने कहा जी मसला तो हल हो रहा है ना, हमारा मसला ये था एज अ कौम जो है ना हमारा मसला ये नहीं है, हमें लगता है मसला हल हो रहा है, ठीक है। लोड शेडिंग का हमें तब पता चला कि जब लोड शेडिंग होनी शुरू हुई फिर हमारे जनरेटर भी बंद होने शुरू हो गए, जब हमारे यूपीएस भी काम करने छोड़ गए तब हमें समझ आई वो लोड शेडिंग हो रही। सेम इज द केस हमने ये किया ना, हमने कहा चले ठीक है प्रॉब्लम को मिटिगेट नहीं किया, हमने कहा लोड शेडिंग हो कोई बात नहीं, जनरेटर दे दो। जब जनरेटर भी काम करने छोड़ गए कोई बात नहीं, यूपीएस को बात, जब यूपीएस भी काम करने छोड़ गए फिर मैं रियलाइज हुआ ऐसा कौन वो बड़ा मसला हो गया। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर भी डेवोल्यूशन ऑफ पावर। मैं ये कभी भी नहीं कह रहा कि आप सारी की सारी पावर और ओवरसी भी ना करें, ओवरसी करें, जो गलत करता है वो जवाब देगा। जैसे नेशनल हेल्थ विजन में नेशनल एजुकेशन विजन किया वो फेडरल थे, उसके बाद में प्रोविंस का इम्प्लीमेंट करेंगे बोले उसको भी। ठीक है जी, 19th अमेंडमेंट पर आ 19th अमेंडमेंट वोट करें। 19th अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, 22nd December 2010 it was passed from the National Assembly on 22nd December 2010. It was passed from the Senate on 30th December 2010 and by the President on January 1, 2011. एक साल लग गया अमेंडमेंट। 22nd December, 30th December, 1st January. National Assembly, Senate and President 2010 और 1st January 2011। इस अमेंडमेंट के तहत सुप्रीम अपना जुडिशियल कमीशन जो था जो कि अपॉइंटमेंट्स करता था जजेस की, उसके अंदर 2 की बजाय 4 सीनियर जजेस बैठते हैं। It was written in this amendment that for the judicial commission it is compulsory that instead of 4 serving judges there should be instead of 2 serving judges there should be 4 serving judges। जो जुडिशियल कमीशन है ना वो इस तरह बनता है, आपका चीफ मिनिस्टर होता है, सॉरी चीफ जस्टिस होता है, आपके पास 4 सीनियर तरीन जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, आपके पास अपना क्या नाम है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, उसका जो मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ लॉ वो बैठता है, आपके पास जो चीफ जस्टिस है वो एक सीनियर तरीन वकील को बिठाता है, आपका एक पुराना चीफ जस्टिस बैठता है और आपके हाई कोर्ट के 2 जजेस बैठते हैं। ये है आपका जुडिशियल कमीशन। ये जुडिशियल कमीशन फिर फैसला करता है कि कौन सा वकील और कौन सा जज जो है वो हाई कोर्ट में एलिवेट होगा या कौन सा जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या कौन सा जज फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, वो ये फैसला करता है। 19th अमेंडमेंट में ये बात हुई थी कि इसकी जगह पहले 2 थे बैठे हुए। 19th अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि नहीं अब 2 नहीं 4 बैठेंगे सीनियर जज। ये पहली अमेंडमेंट थी 19 की। अब सवाल तो लास्ट 2 है वो कौन थे? The 2 judges of High Court. One the senior अपना लॉयर, कोई भी लॉयर हो सकता है, उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करेगा, कोई भी सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट का, एक पुराना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का और एक आपके पास जो है वो मिनिस्टर ऑफ लॉ। ठीक हो गई? मिनिस्टर ऑफ लॉ। और फिर अब ये चेंज होगा ना बाद में, ये अभी मैं 19th अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं, इसके बाद में चेंज हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर भी आएगा उसके, तो मैं आपको बता दूं चीजें अभी हम समझे कि 4 2 की बजाय सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो तो डिसाइडेड नहीं होते, वो देता है जो भी आरएस न्यूटी में वो आते जाते हैं, उसमें चेंज तो न्यूटी तो हो जाती है, लेकिन आपने 15 अब रिटायर हो गए, एक जज रिटायर हो गया है, आपने सुप्रीम कोर्ट का जज तो लगाना है, आप इसको लगाएंगे अब नहीं चीफ सुप्रीम कोर्ट का तो आप जैसे लाहौर हाई कोर्ट से उठाते हैं ना, लोअर कोर्ट से। किसने कहा
जैसे भी लास्ट अगर आपके 15 जजेस हैं, 3 रिटायर हो गए, 12 रह गए, जो आप 3 हैं वो आप कहां से लाएंगे? हाई कोर्ट से लाएंगे ना। कौन से जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? ये फैसला करना तो किसी ने तो है ना, तो वो फैसला ये करते हैं। चीफ जस्टिस का भी फैसला करते हैं, चीफ जस्टिस का भी ये फैसला करते हैं। सेनोरिटी डिसाइड हो जाती है ना, जब सेनोरिटी डिसाइड हो जाती है तो अल्टीमेटली चीफ जस्टिस का फैसला इन्होंने नहीं किया ना। लेकिन अब ये नहीं पता फैसला तो एग्जैक्टली इसका है, पिछले एक दिन के लिए बने हुए बनता चीफ जस्टिस है, ऐसे ही सेनोरिटी डिसाइड हो जाती है। सिक्योरिटी की बेस पे जैसे वो 15 पूरे हो जाते हैं, सेनोरिटी डिसाइड हो जाती है। ऐसे नहीं होता जैसे वो आर्म फोर्सेस का आर्म फोर्सेस में ऐसा नहीं होता कि चौथे को 5वें को लगा दें और 8वें को लगा दें, फिर वो वही आपको हटा दें। एक लॉयर, एक एक्स चीफ जस्टिस है, एक रजिस्ट्रार ऑफ लॉ, 2 हाई कोर्ट जजेस 2 हाई कोर्ट के जजेस हैं, और 4 सर्विंग जजेस। 4 सर्विंग जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस है। ऐसा तो लिखा है मेरे सामने, मेरे पेज पे कितने हुए? 40। अभी ज्यादा लंबे हैं। तो क्या होगा? तो मेंबर ज्यादा हो गए, इसमें खराबी है नहीं। आपने 4 बोले थे। वो मैंने कहा था 4 जजेस होंगे, पहले 2 बैठा करते थे। अच्छा, सिर्फ अब उसके मुताबिक अब 4 जजेस बैठेंगे। तो भैया लकी मरबत और टांग डिस्ट्रिक्ट्स को फाटा का हिस्सा करार दिया गया। लकी मरबत और टांग districts were became part of जो है वो federally administrative tribal areas। ठीक हो गया? The High Court of Islamabad's name was changed into Islamabad High Court। पहले इसका नाम मैंने बताया कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद था, इसका नाम चेंज करके उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कर दिया। ठीक है जी। और इसी के अंदर फिर उन्होंने बाद में किया प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड, the inclusion of the prime minister in the appointment of judges, the inclusion of the prime minister in the appointment of judges। ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ये जजेस डिसाइड करेगी, डिसाइड नहीं करेगी, नॉमिनेशंस प्रेजेंट करेगी, वो नॉमिनेशन फिर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर उसको साइन करके प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल देके जजेस अपॉइंट करेगा। ये कमेटी बनेगी, ये अपनी नॉमिनीज देगी, ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगी, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देगा, वो सदर के पास जाएंगी, सदर उसको साइन करेगा, अप्रूवल। ये सीक्वेंस पहले वो रिजेक्ट करता है फिर 1/3 मेजॉरिटी। मैं आपको ना जब जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल कमेटी का एक्टिविज्म पढ़ाऊंगा ना, आपसे बताऊंगा कि पहले ऐसा नहीं होता। 96 में केस आया था जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया, मैं आपको बताऊंगा। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको कराऊंगा। मसला क्या परेशानी नहीं जी, ये 19th अमेंडमेंट 20th अमेंडमेंट का क्या शुक्र करो। आपकी दूसरी अमेंडमेंट क्या थी कि अपनी मुस्लिम नहीं, बस ये अमेंडमेंट दिया, दैट्स इट। छोटी बड़ी अमेंडमेंट नहीं, इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीजें हो बाकी की। पहली अमेंडमेंट आपकी ये थी कि भाई वो क्या नाम है उसका, ईस्ट पाकिस्तान को आपने फारिग कर दिया था, तो जहां 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 ईस्ट पाकिस्तान लिखा हुआ था वहां चेंज कर दो उसको। अमेंडमेंट इतना होगी परेशान होना, ठीक है। 20th अमेंडमेंट जी, ये 2012 में हुई थी, 14 फरवरी, 14 फरवरी 2012। क्या उसने कुछ करने को नहीं था, उनके पास उनका अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्या जरूरी है कि आपके पास जो है जो भी है क्या है प्रॉब्लम यार, हंस रहे हो, हंसने की जरूरत नहीं है वो जो, ठीक है। अब उसमें ये हुआ कि from the National Assembly it was approved on 14/2/2012, it was moved to the Senate on 20th February 2012 and the President of Pakistan signed on 28th of February 2012, 20th February and 28th of February। ये तो बड़ी देर लगी है, आपने 21st अमेंडमेंट की है, वो तो एक दिन में की थी आपने, करते हैं आगे चलते हैं उसको, ठीक है जी। ये तो बेसिकली था, इट वाज बेसिकली द इंस्टॉलेशन ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट। वो केयरटेकर गवर्नमेंट किस तरह इंस्टॉल होगी उसका डिसीजन आपने 20th अमेंडमेंट में किया, द इंस्टॉलेशन ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट। आपने ये भी बताया कि द केयरटेकर गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द केयरटेकर गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और लास्टली आपने इसके अंदर एक और बात लिखी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमीशन के जितने भी मामला होंगे, ठीक है जी, वो भी जो है वो केयरटेकर गवर्नमेंट
उनको जो है देखिए वो जिसको इलेक्शन रिफॉर्म्स का नाम है सॉर्ट ऑफ इलेक्शन रिफॉर्म्स से, लेकिन आगे चलते हैं, हम आगे करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स, राइट। अब इसके मुताबिक क्या हुआ, the amendment said कि 8 member कमेटी बनेगी, 8 members कमेटी बनेगी, even in the provinces and in the center। वो 8 member कमेटी में 4 ऑपोजिशन के लोग होंगे, 4 आपके जो हैं वो गवर्नमेंट के लोग होंगे। वो 8 member कमेटी अपनी नॉमिनीज प्रेजेंट करेगी और नॉमिनीज पर 3 दिन के अंदर फैसला होगा। अगर 3 दिन में नॉमिनीज पर फैसला ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। इसके बीच में पेद आता है जी, इसके बीच में एक पेद आता है किसके बीच में? इन दोनों इलेक्शन कमीशन से पहले एंड जस्ट कमेटी के बाद क्या मेरे ख्याल से शायद ऑपोजिशन लीडर एंड प्राइम मिनिस्टर का आपस if the decision is not taken by this committee, the second step is that the opposition leader and the prime minister, who is basically the head of the parliament, will be able to decision on that. आपस में मीटिंग होती है, वो तो वैसे ही होती है इसी के, इसमें it was not the part of the constitutional amendment, it was not written in the amendment, it was written on the amendment कि 8 member कमेटी बनेगी, वो नॉमिनीज प्रेजेंट करेगी, 3 दिन के अंदर डिसाइड करेगी, डिसीजन ना हुआ तो आप जो है उसको इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। वो कमेटी जो है आपस में अगर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर जो उस वक्त के करंट हैं वो आपस में मिलना क्या मिल सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं, उसमें डेज कुछ डिसाइड नहीं है। 3 दिन तो इस कमेटी के पास है ना, उसके बाद बाद के स्टेप के बाद फिर डिसाइड। वो तो जितना मर्जी चलता है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ उसमें अमेंडमेंट में क्या लिखा हुआ है। अमेंडमेंट में ये लिखा हुआ था कि 8 लोगों की कमेटी बनेगी जो 3 दिन के अंदर फैसला करेगी, 4 ऑपोजिशन के मेंबर होंगे, 4 आपके गवर्नमेंट के मेंबर होंगे, जो अपनी नॉमिनीज देंगे उस पर डिसाइड करेंगे। अगर डिसीजन ना हुआ 3 दिन में तो इलेक्शन कमीशन के पास बात चली जाएगी, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि इसमें से कौन सा बंदा जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसके अलावा अगर हम जो मर्जी करते रहे चीजें, जब हम 2 दिन का टाइम ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि ठीक है जी अकॉर्डिंग टू द लॉ टाइम खत्म हो गया, लेकिन हमने मीटिंग करनी है 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, वो टाइम वैसे अपना इस्तेहकाम इस्तेमाल करते हुए दे दे, वो लॉ का हिस्सा नहीं, अपना इस्तेहकाम इस्तेमाल करता हुआ जितना मर्जी टाइम दे दे, वो तो प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने नहीं पढ़ा है, अगर इनके हुआ तो मुझे भी बताना, मैं भी इसको करेक्ट करूंगा, लेकिन आप घर जाके चेक करें। Whatever I have written, I have read 8 members committee, 4 opposition, 4 government. They will decide the chief minister and the prime minister of Pakistan. 3 दिन का टाइम है, ना हुआ डिसाइड तो इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ECP पर तो अपॉइंटमेंट किया गया है, ठीक हो गई, कंप्लीट। आगे चलें, 21st अमेंडमेंट सर जी जी आप नहीं जाने क्यों? ठीक है, आपकी मर्जी। I'll be back in 15 minutes. आप 2 घंटे में 21st अमेंडमेंट यार मैं तो रोक सकता हूँ आपको यार। जी आप लेके जाएंगे, रिटर्न देंगे, एक्चुअली रिटर्न देंगे, इजाजत प्रॉपर लेना ताकि मेरे पास सबूत रहे कि आपने जो इजाजत दी है, मैंने इजाजत दी है। ठीक है, 21st अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। पेशावर मैसेकर हो गया, पेशावर मैसेकर के बाद आपने 21st अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, वो पेशावर मैसेकर के बाद आपने जो 21st अमेंडमेंट की, इट वाज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स इन योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने आर्टिकल 175 को अमेंड किया। वो आर्टिकल 175 पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट पर बात करती है, आपने उसमें बात पावर्स ऑफ द कोर्ट पर बात करती है, आपने उसमें अमेंडमेंट की और मिलिट्री कोर्ट्स में आपने उसके अंदर जो है वो उसमें उसको ऐड करवाया। 6 जनवरी 2015 को सेनेट और नेशनल असेंबली ने साइमल्टेनियसली इसको अप्रूव किया और अगले ही दिन 7th को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस पे साइन कर दिए। ये वाहिद अमेंडमेंट थी जो एक दिन के अंदर अप्रूव हो गई और इस अमेंडमेंट के अंदर एक ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है ना वो सेल्फ कंटेन्ड क्लॉज था कि ये अमेंडमेंट 2 साल के बाद खत्म हो गया। तो ये इस अमेंडमेंट को खत्म होना था 7th जनवरी 2017 ऑटोमेटिकली इसको 7th जनवरी 2017 को खत्म होना था। इसमें सेल्फ कंटेन्ड सनसेट क्लॉज ऐड किया गया।
It was the 21st Amendment in the Constitution of Pakistan. तो सवाल का मसला को परेशान 6th January 2015 and it was signed by the President of Pakistan on the 7th January 2015. But they are not resolved. हाँ नहीं हुई तो 23rd Amendment यही हुई थी कि आपने फिर 2 साल के लिए और कर दिया उसको अभी 21st पे बैठे ना आई 22nd 175 22nd Amendment 22nd Amendment. The procedure of the appointment, qualification, the procedure of the appointment and qualification of the Chief Election Commissioner. The procedure of the appointment and qualification of the Chief Election Commissioner इसको डील किया था आपने Amendment number 22 के. इस अमेंडमेंट से पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस का इख्तियार था कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते थे। इस अमेंडमेंट के बाद टेक्नोक्रेट्स भी बन सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दो कि अभी भी हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो रिटायर्ड जस्टिस हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट इस जजेस के अलावा भी कोई ना कोई बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन बन सकता है। इस वक्त 5 जो मेंबर्स हैं उसमें से सुमरो साहब हैं वाहिद जो सिंध से हैं, जो कि जस्टिस नहीं है या जज नहीं है, बाकी सारे चारों मेंबर्स जो जजेस रिटायर्ड जजेस। अकॉर्डिंग टू दिस अमेंडमेंट it was made it was the ban on the क्या नाम उसका the chief election commissioner and the जो है judicial अपना election commission, उस पे बैन लगा हुआ था कि आपके पास सिर्फ जजेस ही आएंगे रिटायर्ड। ये बैन खत्म कर दिया गया और टेक्नोक्रेट्स को भी अलाउ कर दिया गया कि वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो है वो बन सकते हैं। दिस वाज डन इन 22nd अमेंडमेंट। टेक्नोक्रेट में कोई भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स वगैरह ये कुछ हो सकता है, हां उसमें ही लिख दीजिएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने उसकी मैक्सिमम एज 68 होनी चाहिए, अगर वो मेंबर बने तो उसकी मैक्सिमम एज 65 होनी चाहिए। ये लिखा गया है। The person who has to be made the chief election commissioner should not be more than 68 years and the members should not be more than 65 years maximum नहीं should not be more than maximum sorry। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 साल। और हाई कोर्ट के 60 गुड 62 इयर्स। हाई कोर्ट के जजेस 62 इयर्स पे रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जजेस 65 पे होते हैं। कई बार इस तरह के एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन के लिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 22 ये रूल बना दिया गया कि उसकी एज नॉट मोर देन 68 होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन नॉट मोर देन 65 इयर्स ऑफ एज। और आखिरी चीज इसमें लिखी गई, उन्होंने ये कहा कि चारों मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन विल नॉट रिटायर साइमल्टेनियसली। चारों मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन विल नॉट रिटायर साइमल्टेनियसली, बल्कि 2.5 साल के बाद जो है वो रिटायर होंगे। 2 फिर 2.5 साल के बाद रिटायर होंगे, राइट? 5 साल के लिए बनते हैं, 2.5 साल के बाद 2 रिटायर होंगे, उसकी जगह 2 नए आ जाएंगे, 2.5 साल के बाद फिर रिटायर होंगे, 2 नए आ जाएंगे। तो ये रूल बन गया कि साइमल्टेनियसली आपने इकट्ठा जो है इसको खत्म जो नहीं करना। बार बार वक्त देख रहे सर 8 मिनट का टाइम है, परेशान नहीं होना, मैं भी बोल ही ना हूं। हम ब्रेक लेते हैं 5-7 मिनट, ठीक है? अमेंडमेंट्स खत्म हो जाए उसके बाद ब्रेक लेते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म और बाकी को बाद में पढ़ते हैं, ठीक है? आइए 23rd अमेंडमेंट के ऊपर। आपको लगा कि 2 साल के अंदर हम तमाम जो दहशतगर्द हैं उनको हम फांसियां नहीं दे सकेंगे, तो आपने 2 साल के बाद अपनी जो क्या नाम है मिलिट्री फोर्स थी उनको मजीद 2 साल की एक्सटेंशन दी। वो 2 साल की एक्सटेंशन को मिल गई। अब वो 2 साल खत्म हो रहे हैं 6 जनवरी 2019 को। जब तक आपके पेपर आने तब तक उन्होंने भी और अमेंडमेंट भी आ चुकी होंगी। अभी देखना पड़ेगा कि वो उस अमेंडमेंट के अंदर क्या करते हैं। टाइम है 6 जनवरी 2019 तक। अब तक उन्होंने जो है इसको मजीद एक्सटेंड किया 2017 के अंदर। ठीक हो गया जी? ये 23rd अमेंडमेंट है। 24th अमेंडमेंट पे आ जाएंगे। थोड़ी है आपके पास साइमल्टेनियसली 2 सिस्टम ऑफ जुडिशरी चल रहे हैं, इतनी बड़ी बात है। चीफ जस्टिस से पूछेंगे क्या अमेंडमेंट हमसे पूछे यार, वो कहते हैं आप केस ले लें, उधर ले लें केस, उधर ले लें, वहां से केस आता है उधर ले लें।
खैर जी 24th अमेंडमेंट आप कह सकते हैं जी 3 अमेंडमेंट जो बेचारे सफर कर रहे हैं उनसे पूछें क्या बोले 24th अमेंडमेंट की बात सेंसस हुआ जी 2017 के अंदर और आपको रियलाइज हुआ कि आपकी आबादी जो है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है तो आपने अपनी सीट्स जो है ना पार्लियामेंट के अंदर वो एडजस्ट की टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिमेन्ड द सेम सिंध की सीट्स उतनी ही रही पंजाब ने अपनी सीट्स लूज की केपीके और बलूचिस्तान ने अपनी सीट्स इंक्रीज कर दी तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिमेन्ड द सेम Sindh, the total number of seats in Sindh remained the same. Punjab lost the seats. KPK and Balochistan gained the seats. ये आपकी 24th amendment हुई थी in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The last amendment, 25th. Number C. जी. Number 342 sir. Remained the same. change. Change नहीं है वो नहीं पता मैंने पढ़ी नहीं वो मैंने पढ़ी नहीं मैं अभी ब्रेक होती है तो उसमें देख लेते हैं अभी तक लिखना पड़ेगा 25th amendment है merger of FATA with KP was the 25th amendment 28th May 2018 को हुई 28th May 2018 को simultaneously from the National Assembly and the KPK government also KPK Assembly वहां से simultaneously pass हुई एक amendment जो कि 25th amendment थी merger of FATA with KP this was the last amendment that happened till now the federally administered tribal areas were merged with the Khyber Pakhtunkhwa province ये हैं टोटल amendments अभी तक 25 इसके अलावा proposed amendments हैं अभी वो अभी भी on the floor of the National Assembly मौजूद है लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ उस पर कोई हमें अभी कोई रूलिंग नहीं आई रूलिंग आ जाएगी तो 26th अमेंडमेंट हो जाएगी 27th हो जाएगी अभी तक के लिए इन पाकिस्तान का 25 अमेंडमेंट्स हैं एनी क्वेश्चंस नहीं जी ब्रेक ले रहे हैं 5-7 मिनट